ऑलराइट, सो अभी तक हमने देखा था, हमने यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव देखे थे. वी हैव सीन द बैरियर मेथड, वी हैव सीन समथिंग लाइक योर नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. तो ये दो टर्म्स हमने देखे थे क्लास के अंदर, ये दो टर्म्स हमने देखे थे, सीखे थे, समझे थे. So we have done these two terms and now we can go beyond them. We can go beyond them and then we have started with, हमने start किया था हमारे यहाँ पे IUDs को लेके. हाँ जी अक्षरा बताइए. सर एक बार लैक्टेशनल एमिनोरिया रिपीट करना. हाँ कर देते हैं. So lactation amenorrhea में basically बेटा यहाँ पे क्या होगा, that during the lactation period के अंदर the girl won't be undergoing any kind of ovulation, right? Girl के अंदर ovulation होते हुए आपको वहाँ पे नहीं दिखेगा. And because of that, any kind of sexual intercourse or coitus during the lactational period will not lead to pregnancy. तो pregnancy के यहाँ पे आपके chances काफी कम आपके यहाँ पे रहते हैं. Okay, so this lactation period is something which is going to last for 6 months. So ये 6 महीने के लिए काफी हद तक safe होता है. Beyond that, it is not safe. So याद रखना, for the 6 months you will be finding the possibility of getting conceived or possibility of attending the pregnancy during the 6 months is going to be very less. Okay. So during the breastfeeding period, the chances of getting conceived is going to be very less. It is going to be very nil ही रहते हैं वहां पे, क्योंकि ovulation ये टाइम पे हो नहीं रहा होता. So ये बात याद रखना अक्षरा, that during this 6 months there will be no ovulation will be happening, no menstruation will be happening during this time period. So no chance of pregnancy in this period. ठीक है, तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है. Alright, so let me now start the screen share and actually देखा है मैं क्या रखना है. हाँ जी अपूर्वा, गुड इवनिंग. ऑलराइट, ऑलराइट हिमाचल टीम, एक बार फिर बताना चाहूंगा कि ये संडे से आपका टेस्ट हो पाएगा. लाइक मोस्ट लाइकली इट विल बी हैपनिंग ऑन संडे, सो प्लीज बी प्रिपेयर. अपूर्वा, दीक्षा, अक्षरा एंड मोनिका. ठीक है, ऑलराइट. सो चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं पिछले क्लास में हमने क्या देखा था. लेट्स सी आज हमें यहाँ पे क्या देखना है. तो वी हैव सीन दिस बैरियर मेथड्स ओवर हियर. So we have discussed the condoms and we have discussed इनके advantage यहाँ पे क्या होता है. It protects from STD along with it protects the people from getting unwanted pregnancy. उसके साथ साथ STD से भी यहाँ पे इसे protect करेगा, right? They are also disposable. Then we have discussed the diaphragm, cervical caps and vaults. जब हमने इन्हें डिस्कस किया था तो याद रखना these were the contraceptive which are reusable. ये जो contraceptive हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे ये आपके reusable थे and they were inserted in the vagina or the cervix. और याद रखना these contraceptives are not only used by themselves, you are also going to use along with them some jellies and creams have been used over here which are going to retard the movement of the sperm and going to kill them. Okay, so they are usable and they are used along with the jellies and the cream. So spermicidal creams यहाँ पे use की जाती है and because of those cream what will happen, it retard the motility of the sperms. So sperms की motility आपके यहाँ पे retard हो जाती है and which ultimately kills the sperm. Okay, that is something you will get to see. So diaphragm and we have discussed all those things जो हमने वहाँ पे discuss किया था, हमने देख लिया यहाँ पे. Then हमने start की थी हमारी कहानी यहाँ पे इंट्रा-यूट्रिन डिवाइस को लेके. So जब हम डिस्कस करते हैं about the intra-uterine device, तो आपको यहाँ पे एक चीज क्लियरली याद रखनी है कि these devices are widely accepted in the country. ये जो डिवाइसेस हमारे यहाँ पे इंट्रा-यूट्रिन डिवाइस, इनको वाइडली एक्सेप्ट किया गया है कंट्री के अंदर. सो कंट्री के अंदर लाइक दे आर बीन वाइडली एक्सेप्टेड. ओके, सो intrauterine device are inserted by the doctors or the nurse inside the uterus through vagina. और इसके कुछ एग्जांपल आपके सामने आपको यहाँ पे दिख जाएंगे. You will have your non-medicated IUDs. You will have your copper releasing IUDs. You will have your copper. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening. You will have this copper releasing IUDs over here. जिसके अंदर आपको यहाँ पे आएगा copper T, copper 7, multi-load 3675. And then there is a hormonal IUDs, right? Intrauterine device. तो आप इसमें एक बात यहाँ पे याद रखते हैं कि first of all they are inserted inside the uterus. Second thing मैंने आपको अगर याद हो तो बताया होगा कि जब ये डिवाइस इंसर्ट किया जाता है, so it is inserted in thinking that the couple is not planning to have a baby for next 3 to 5 years, right? So लंबे टाइम के लिए when the couple are very much sure कि they are not planning to have a family, they are not planning to extend the family, तो वो टाइम पे IUDs यहाँ पे यूज की जाती है. Okay, and याद रखना it has been only been used under the guidance of a doctor or a nurse, trained nurse, right? तो आपको यहाँ पे समझना ये कि IUDs काम कैसे करते हैं. तो अगर हम बात करते हैं आप पे लाइक जनरली अगर आपसे कोई पूछता है कि IUDs काम कैसे करते हैं, तो आपको ये बताना है that IUDs actually going to play an important role in carrying out the phagocytosis of the sperm.
तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अगर कोई आपसे जनरली पूछता है दैट व्हाट आर द आईओडीज आर गोइंग टू बी जनरली नोन फॉर, तो जो भी हम आईओडीज की बात करते हैं, so you can simply say that they are known for the phagocytosis of the sperm. They promote phagocytosis of sperms. तो स्पर्म्स का फैगोसाइटोसिस करने में आयोडीज आपकी यहाँ पे काफी ज्यादा मदद करे. सो दैट इज समथिंग दे विल प्रमोट. बेसिकली इनके से क्या होगा कि स्पर्म्स आपके आगे ज्यादा बढ़ नहीं पाएंगे एंड अल्टीमेटली दे विल बी ईटन बाय द नियर बाय सेल्स. जो वजाइनल ट्रैक में जो भी आपके यहाँ पे सेल्स होते हैं, वजाइनल ट्रैक में जो भी सेल्स रहेंगे, दे अल्टीमेटली गोइंग टू बी ईटिंग अप दोस पर्टिकुलर स्पर्म्स ओवर देयर. ओके, सो याद रखना ये जनरली क्या करता है, प्रमोट करता है फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म. यहाँ पे ये प्रमोट करेगा. तो एक तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. ओके, देन अगर हम स्पेसिफिकली यहाँ पे डिस्कस करें, अगर हम बात करते हैं कॉपर रिलीजिंग आयोडीज के बारे में, तो याद रखना कॉपर रिलीजिंग आयोडीज क्या करते हैं यहाँ पे, दे सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म. कॉपर रिलीजिंग आयोडीज का यहाँ पे काम क्या होता है, दे आर गोइंग टू सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म. तो स्पर्म्स की जो स्विम करने की जो कैपेसिटी यहाँ पे होती है वो आपके यहाँ पे कम हो जाएगी. दैट विल ड्रास्टिकली कम डाउन. किसके वजह से, बिकॉज ऑफ द कॉपर आयन. सो कॉपर आयन जो यहाँ पे रिलीज किए जाएंगे, दे विल डिक्रीज द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म. राइट, तो इसके एग्जांपल आपको यहाँ पे याद रखने हैं. You have a Cu copper T copper 7 and then you have a multilode 375. ये तीन आपको एग्जांपल याद रखने ऑफ द आयोडीज जो कॉपर रिलीज करते हैं. और एक बार अगर स्पर्म की मोटिलिटी यहाँ पे खत्म हो गई या बहुत कम हो गई, देन आप जानते हो कि ये जो स्पर्म होगा ये कभी भी फेलोपियन ट्यूब तक आप यहाँ पे रीच नहीं कर पाएगा. तो ये एक बात आपको इसके अंदर याद रखनी. दिस इज ऑल्सो वन थिंग विच यू ऑल हैव टू रिमेंबर. राइट, देन यू हैव द हार्मोनल आयोडी. अब हार्मोनल आयोडी यहाँ पे क्या करेगा, हार्मोनल आयोडी बेसिकली क्या करता है, ये यूट्रस को कर देता है अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन. सो याद रखना ये जो हार्मोनल आयोडी आपका यहाँ पे होगा, दिस विल रिलीज सम हार्मोन्स. सो प्रोजेस्टेरॉन एंड LNG-20 जो यहाँ पे होंगे, दे आर गोइंग टू रिलीज सम हार्मोन्स. और उन हार्मोन्स की वजह से जो यूट्रस होगा वो हो जाएगा अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट यूट्रस बिकम्स अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन. दैट विल बी सीन हैपनिंग ओवर हियर. इसके साथ साथ एक और चीज आप यहाँ पे याद रखना कि ये इवन सर्वाइकल एरिया को या सर्वाइकल म्यूकस को यहाँ पे ये हॉस्टाइल कर देगा. सो सर्वाइकल म्यूकस बिकम थिक. तो एक तो ये चीज आपके यहाँ पे हो रही है. उसके साथ साथ सर्वाइकल म्यूकस भी यहाँ पे आपका थिक हो जाएगा. सो ये भी याद रखना है यहाँ पे, दैट सर्वाइकल म्यूकस ऑल्सो बिकम्स, सर्वाइकल म्यूकस इज गोइंग टू बिकम थिक. अगर सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाता है, सो दैट मीन्स वहां से मेल गैमेट्स आपके पास नहीं हो पाते हैं. So you will be finding कि मेल गैमेट्स आपके यहाँ से पास नहीं हो पाएंगे and that is why they will get trapped over there. So ये भी याद रखना कि सर्वाइकल म्यूकस यहाँ पे थिक हो जाएगा. इससे क्या होता है कि ये एक हॉस्टाइल एरिया बन जाता है. हॉस्टाइल मतलब जो सूटेबल नहीं है स्पर्म्स के लिए, इट बिकम हॉस्टाइल फॉर द स्पर्म्स. ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस एरिया अल्टीमेटली बिकम्स हॉस्टाइल फॉर द स्पर्म. दिस एरिया बिकम्स हॉस्टाइल फॉर स्पर्म्स. ठीक है, तो दो चीजें रखना. एक तो आपका यहाँ पे जो यूट्रस होगा दैट इज अनसुटेबल. यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा नहीं. क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ से आपके कुछ हार्मोन्स आ रहे हैं एंड दोज हार्मोन्स आर गोइंग टू मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन. उसके साथ साथ दे आल्सो मेक द सर्वाइकल म्यूकस थिक. जो सर्वाइकल म्यूकस यहाँ पे होगा उसे हम यहाँ पे थिक कर देंगे, तो स्पर्म यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते. इट बिकम्स हॉस्टाइल एरिया फॉर द स्पर्म. तो स्पर्म आगे आपके बढ़ नहीं पाएंगे, वहां पे अटक जाएंगे. एंड दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस हार्मोनल आयोडी के साथ. सो याद रखना हार्मोनल आयोडी जो आपके यहाँ पे होती है वो इस तरीके से आपकी काम करती है. प्लीज याद रखना, दे आर गोइंग टू रिलीज सम हार्मोन्स, दे आर गोइंग टू रिलीज सम हार्मोन्स. और ये जो हार्मोन यहाँ से रिलीज किए जा रहे हैं, दे आर सिंथेटिक हार्मोन्स. ये आपके नेचुरल हार्मोन्स नहीं है, दे आर माय सिंथेटिक हार्मोन्स जो यहाँ पे रिलीज किए जाएंगे एंड दे डू नॉट अलाउ एनी पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्लांटेशन. तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है. दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो. तो आयोडीज के अंदर आपको तीन याद रखने. यू हैव अ नॉन मेडिकेटेड आयोडीज ओवर हियर. एक आपका होगा नॉन मेडिकेटेड आयोडीज जिसका एग्जांपल आपका यहाँ पे लिपी लूप्स. राइट, दूसरा आपका यहाँ पे आपका कॉपर रिलीजिंग आयोडीज और तीसरा आपका है यहाँ पे हार्मोनल आयोडी. अगर आपसे कोई जनरली पूछता है कि आयोडीज का जनरली काम क्या होता है, देन यू कैन सिंपली से देम एज दे प्रमोट द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म्स. देन अगर आपसे कोई स्पेसिफिकली पूछता है कि हाँ कॉपर रिलीजिंग वाला आयोडी कैसे काम करता है, देन यू कैन टेल देम इट डिक्रीज द स्पर्म मोर्टेलिटी. राइट, अगर आपसे कोई पूछता है कि हार्मोनल आयोडी कैसे काम करता है, देन यू कैन क्लियरली टेल देम that the uterus is no longer suitable for implantation because of the hormone released by your hormonal iodides like LNG-20 and progesterone.
तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। एंड ऑल्सो सर्वाइकल म्यूकस आपको यहाँ पे थिक हो जाएगा, सो द स्पर्म्स आर नॉट एबल टू बाईपास थ्रू दैट पर्टिकुलर एरिया। तो ये चीजें आपको होते हुए आपको मिलेगी यहाँ पे। ओके, सो IUDs आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले द प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन। तो अगर आपको बहुत डिले करना प्रेगनेंसी को, दैट हैपेंस टू बिकम अ बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। हाँ जी तवनप्रीत बताइए। सर नॉन मेडिकेटेड आयोडीज कैसे हेल्प करते हैं? नॉन मेडिकेटेड आयोडीज जो आपके यहाँ पे था, क्योंकि यहाँ पे इनसाइड में यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं ये लोग आपके कैसे काम करेंगे। सो नॉन मेडिकेटेड आयोडीज जो आपके यहाँ पे होते हैं, दे क्रिएट इरिटेशन ऑन द वॉल ऑफ द यूट्रस। सो नॉन मेडिकेटेड आयोडीज आर नोन टू क्रिएट द इरिटेशन ऑन द वॉल ऑफ द यूट्रस, ऑन द वॉल ऑफ द एंडोमेट्रियम। और उसके से क्या होता है, एंडोमेट्रियम बिकम्स अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। So they are known to create an irritation on the wall of the uterus, that is your endometrium, और उसके वजह से your endometrium becomes unsuitable for implantation। और क्योंकि वो implantation के लिए suitable नहीं होती, because that's why there is no possibility of having a zygote getting implanted over there। तो ये तरीके से आप याद रखना, ये लोग कुछ रिलीज यहाँ पे नहीं कर रहे होते, they are basically going to make the wall of the uterus unsuitable for implantation by creating a irritation over there। तो ये चीज आपको याद रखनी है about the non medicated IUDs को लेके, ठीक है। सो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। एंड जनरली अगर कोई पूछे क्या कर रहे हो, सो दैट इज द टर्म यू हैव टू यूज। व्हाई वी हैव टू यूज दिस टर्म अगेन, बिकॉज दैट इज समथिंग यू विल हैव टू फॉलो एज पर द एनसीईआरटी, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। इट इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ये हमने पहले ही बोला था, ये आपका सबसे वाइडली एक्सेप्टेड मेथड आपका यहाँ पे हो जाएगा कॉन्ट्रासेप्शन का। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ओके। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट आपके सामने है, मुझे बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके लिए यहाँ पे सही बैठेगा। चूज द राइट अमंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो जो भी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सामने है, अपेक्षा बताइए क्या होगा इसके अंदर सही आंसर। सर बी ऑप्शन। राइट, सो IUDs increase the phagocytosis reaction in the uterus, that is going to be a much more true answer over here। ये phagocytosis यहाँ पे आपका इनिशिएट कराते हैं, जहाँ पे जो स्पर्म्स आपके वहां पे होंगे उनको आप खा जाओगे, आपको मतलब वहां पे जो सेल्स होंगे उससे जाके इन्वेल्व कर लेंगे। तो यस, ऑप्शन बी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर, ठीक है। सो यहाँ पे हमने अब बात करेंगे, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट IUDs, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड सर्जिकल मेथड्स। सो जब भी हम बात करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को लेके, तो यहाँ पे बेसिकली आते हैं आपके कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसके अंदर आपका होता है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन के अंदर। अब याद रखना है जब हम बात करते हैं इन पिल्स के बारे में, इधर समटाइम दे आर हैविंग ओनली प्रोजेस्टेरॉन, या कई बार आपको ये जो पिल्स मिलेंगे दे विल हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ योर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, बोथ ऑफ देम, ओके। अब ये पिल्स को जब लिया जाता है, दे वर्क एज अ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इनको कंज्यूम कैसे किया जाएगा, या इनको आप कैसे रन करोगे साइकिल्स के अंदर, तो याद रखना जैसे मेंस्ट्रुएशन चालू होता है, वंस द मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट, उसके बाद ये पिल्स को कंज्यूम करना चालू किया जाता है एंड विल बी कंज्यूम फॉर 21 डेज। याद रखना ये जो पिल्स होती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इनको हम कंज्यूम करते हैं, द गर्ल इज गोइंग टू कंज्यूम देम फॉर 21 डेज। 21 डेज के लिए इनको कंज्यूम किया जाएगा एंड देन यू विल टेक अ गैप ऑफ 7 डेज। उसके बाद अराउंड 7 डेज का यहाँ पे गैप है, देन आफ्टर दैट यू विल हैव अ गैप ऑफ 7 डेज। अब ये जो गैप ऑफ 7 डेज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जब ये गैप लिया जाता है 7 डेज का, तो वो टाइम पे the menstruation will happen and everything will come out in a form of the vagina as a blood। so जो gap of 7 days का हम यहाँ पे ले रहे होते हैं, वो टाइम पे the complete menstrual flow will happen and everything will come out in a form of the blood, and उसके बाद वापस से साइकिल यहाँ पे रिपीट किया जाएगा। so this is something which has been done and again it has been very widely used in the country as a contraceptive pill को इस तरीके से काफी widely यहाँ पे यूज किया जाता है। so they are orally administration can be done over here in a small dose, and ये करती क्या है बेसिकली यहाँ पे, they are not going to promote the ovulation, so they are going to inhibit the ovulation over here। तो जब oral contraceptives यहाँ पे यूज किए जाते हैं, तो यहाँ पे ovulation यहाँ पे नहीं होगा and it does not also allow the implantation, ना ही यहाँ पे ovulation हो पाएगा and it does not gives you the appropriate environment for implantation। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगी and because of that they are going to be widely used। ये भी काफी widely यूज किया जाता है कंट्री के अंदर। so याद रखना they inhibit the ovulation and implantation, ये काम होता है ओरल पिल्स का। तो एक बार देख लेते हैं इनको कैसे यूज किया जाता है। सो ओरल पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज, स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो उसी टाइम पे दिस पिल्स शुड बी वन शुड स्टार्ट कंज्यूमिंग दिस पिल्स एंड देन देयर शुड बी अ गैप ऑफ 7 डेज। ये जो 7 दिन का गैप हम यहाँ पे दे रहे हैं, ये हम इसलिए दे रहे हैं ताकि ये टाइम पे मेंस्ट्रुएशन आपका फ्लो आपका हो जाए, ओके। एंड इट हैज टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न। So after 7 days again you have to take those pills again। अब ये आप तब तक कंटिन्यू करते हो जब तक आप you are not ready to get conceived।
जब तक कपल रेडी नहीं है टू हैव दिस आइडिया ऑफ हैविंग अ फैमिली, तब तक रेगुलरली एवरी मंथ दिस शुड बी डन. सो दिस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूज्ड ऑल द टाइम. ओके, सो याद रखना. इसमें एक बहुत बढ़िया जो एग्जांपल आपका जो है दैट इज सहेली. अब सहेली के साथ इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इट इज अ नॉन हार्मोनल पिल. और सहेली जो आपकी जो पिल है यहाँ पे, इट इज अ नॉन हार्मोनल या नॉन स्टेरॉइडल पिल जो है आपकी यहाँ पे है. इसको बनाया गया था लखनऊ के एक इंस्टीट्यूट के अंदर. सो यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट कॉल्ड में CDRI. So you have this institute called by CDRI, Central Drug Research Institute. I'll write over here. It is called as your CDRI, Central Drug Research Institute. याद रखना CDRI अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ पे आ रहा है, that will come in लखनऊ. तो लखनऊ के CDRI के अंदर ये बनाई गई थी. यहाँ पे ये सहेली नाम की पिल बनाई गई थी. So it has been very widely used. It is non-steroidal और इसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं. Like nil side effect are been seen over here. So this is something also you have to know. It will have a less amount of side effect. So एक ये टर्म आपको यहाँ पे याद रखना है. Okay? So आपसे पूछा जाएगा कि सहेली के बारे में आपको दो चीजें याद रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये लखनऊ में बनाई गई थी. लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनाया गया था इसे. दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो. सेकंड थिंग आपको याद रखना है, इट इज गोइंग टू बी नॉन स्टेरॉइडल या नॉन हार्मोनल पिल हम इसे यहाँ पे बोल सकते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी द सहेली व्हिच इज एडवांसमेंट है एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का. ओके, देन यू हैव समथिंग लाइक अ इम्प्लांट. तो कई बार क्या होता है कि लेट्स से अगर एक कपल प्रेफर नहीं करता ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने का, देन दे कैन गो फॉर इम्प्लांट. अब इम्प्लांट में क्या होता है, ये आप दिस स्मॉल स्ट्रक्चर्स ओवर हियर, ये प्लास्टिक से बने हुए हो सकते हैं या स्टील से बने हुए हो सकते हैं. इनको हम बॉडी के अंदर इम्प्लांट करते हैं. बॉडी के अंदर लाइक अंडरनीथ द आर्म या किसी भी टिश्यू के अंदर हम इसे इम्प्लांट कर देंगे. सो ये जो इम्प्लांट होते हैं जिसको आप आर्म के अंदर कहीं पे भी इम्प्लांट कर सकते हो, इनको इम्प्लांट करने का फायदा ये होता है दैट दे आर गोइंग टू रिलीज सर्टेन अमाउंट ऑफ हार्मोन्स. ये एक सर्टेन अमाउंट के हार्मोन्स ही रिलीज करेंगे एंड बिकॉज ऑफ दोस हार्मोन्स द ओव्यूलेशन विल नॉट हैपन. इनके हार्मोन्स जो यहाँ पे रिलीज किए जाएंगे फ्रॉम द इम्प्लांट्स, बिकॉज ऑफ दैट ओव्यूलेशन विल नॉट टेक्स प्लेस. सो दे वर्क सिमिलर टू द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल. बस इसमें फायदा ये है कि आपको रेगुलरली पिल्स यहाँ पे लेनी नहीं पड़ेंगी. आपने यहाँ पे इम्प्लांट कर दिया एंड नाउ आफ्टर इम्प्लांट यू कैन फाइंड फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम यू डोंट हैव टू वरी अबाउट गेटिंग कंसीव्ड. कोई कपल को यहाँ पे सोचना नहीं पड़ता या उनको कोई यहाँ पे टेंशन नहीं होता टू अटेंड द प्रेगनेंसी बिकॉज दिस इम्प्लांट आर गोइंग टू रिलीज द हार्मोन स्लोली इन द बॉडी. ओके, सो प्रोजेस्टेरॉन अलोन और अ कॉम्बिनेशन विद द एस्ट्रोजन. तो ये जो इम्प्लांट्स होते हैं यहाँ पे आप देखोगे कि इधर प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है और दोनों चीजें आपके यहाँ पे रिलीज की जा रही है. बोथ द थिंग्स विल डू द सेम थिंग. यहाँ पे भी ओवुलेशन आपके यहाँ पे नहीं होगा. यू डोंट फाइंड ओवुलेशन हैपनिंग ओवर हियर एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड देयर वोंट बी एनी चांसेस ऑफ गेटिंग कंसीव्ड. राइट, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्प्लांट अंडरनीथ द स्किन यहाँ पे किया जा सकता है एंड देन यू कैन हैव योर डेली लाइफ. अब यहाँ पे आपको कंसर्न नहीं है टू कंज्यूम द पिल्स. ओके, सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दैट इज समथिंग यू हैव टू नो अबाउट द इम्प्लांट्स. आफ्टर दैट वी हैव दिस टू कैटेगरीज, अनवांटेड 72 pill. These pills are taken within 72 hours after the coitus. So ये जो आपके contraceptive pill हम यहाँ पे mention कर रहे हैं, they are the one which are again going to avoid the pregnancy. Now these are the pills which have been taken before, like within the 72 hours after the coitus. अब ये generally होता क्या, they are called as my emergency contraceptives. याद रखना, they are also been called as your emergency contraceptive. They are also called as your emergency contraceptive. सर वो कितने दिन तक इम्प्लांट करते हैं? नहीं, इम्प्लांट तो आपने एक बार कर दिया तो आपको वैसे के वैसा ही रहेगा. आपको ये पूछना है कि वो कितने दिनों इम्प्लांट करने के बाद कितने टाइम के लिए इट कैन, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट टेकिंग द पिल्स. सो इट वेरीज. कुछ इम्प्लांट्स होते हैं जो लाइक 6 महीने के लिए लाइक यू कैन कीप इट अंडर द स्किन एंड इट वोंट, लाइक यू डोंट हैव टू कंज्यूम एनीथिंग. कुछ इम्प्लांट्स आपके किए जाते हैं विच कैन वर्क फॉर अ ईयर एज वेल. सो इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द इम्प्लांट, इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो आपका इम्प्लांट वहां पे आपका रिलीज कर रहा है. ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी नीड टू सी. हाँ जी, बोलिए सिद्रा. सर आपने कहा कि ओव्यूलेशन नहीं होता है तो फिर क्या मेंस्ट्रुएशन भी ऑकर नहीं होता है? राइट, नो दैट वोंट बी हैपनिंग. सो ना आपका मेंस्ट्रुएशन भी आपका वहां पे नहीं होगा. सो दैट वोंट बी हैपनिंग ओवर देयर. ठीक है, सो इट्स लाइक कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन विल बी हैपनिंग ओवर देयर. सो दैट इज द एडवांटेज ओवर देयर कि आपका बिल्कुल आपका मेंस्ट्रुएशन वहां पे बंद हो जाएगा जब तक आपका इम्प्लांट आपका वहां पे है. ठीक है, सो दैट वोंट बी हैपनिंग बाय एनी मींस. सर वो निकाला जाता है या डिस्ट्रॉयड हो जाता है? उसे निकाला जाता है. द इम्प्लांट see understand, say let's say there is an implant underneath the skin and वो जो skin में implant करने के बाद it has a hormonal concentration जो वहां से आएगा वो around 6 महीने के लिए आएगा.
So after 6 months it is no longer usable over there. So बाद में उसको like as a doctor surgically उसे निकाल देता है, because वो skin के अंदर होता है, तो उसे निकालना भी like it is not a very time consuming process. तो उसे निकाल दिया जाता है, and even अगर उसे निकाला ना जाए, even then the couple can get conceived over there. ठीक है, तो ये बात यहाँ पे याद रखना. सर इम्प्लांट डॉक्टर के द्वारा किए जाते हैं मतलब? हाँ, ये डॉक्टर के थ्रू होगा बेटा, ये सारे डॉक्टर और ट्रेन नर्स, राइट? यू कैन नॉट डू इट बाय योरसेल्फ, हाउ लाइक इट्स नॉट पॉसिबल. हाँ बेटा बताइए तो अंतरित. सर हम 21 डेज के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा रहे, तो उस पीरियड में हमारा मतलब फॉलिकुलर फेज चलेगा और देन वो ल्यूटियल फेज सर मेंस्ट्रुअल जब मेंस्ट्रुएशन होगा. इमेजिन, आप सोचो अगर आप 21 डेज के लिए इफ यू आर जस्ट consuming those pills over there, right? So those pills will have progesterone. अब progesterone अगर आप consume करो then आपका follicular phase अभी आपका कभी वहाँ पे आ ही नहीं रहा. Okay, you don't have any follicular phase happening over there, right? So follicular phase आपका वहाँ पे आ नहीं रहा. The only thing which can be seen happening over there that you will find certain amount of endometrium lining आपके यहाँ पे develop करेगी, and that too because of certain amount of estrogen over there. Okay, तो उसको आप flush out करने के लिए you will have those 7 days का gap. वो 7 days के gap के अंदर that endometrium lining will get flushed out over there. तो वही आपका होता है menstrual flow. बाकी आपको कोई आपका follicle यहाँ पे आपका development होते हुए आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा. समझ आ रही मेरी बात तमनप्रीत? सर अभी आपने बताया कि ओव्यूलेशन नहीं होगी तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी. तो जब हम 7 डेज का गैप ले रहे हैं तब तो मेंस्ट्रुएशन हो रही है ना? वापस बोलना, जब हम गैप ले रहे तब मेंस्ट्रुएशन हो रही है, आप ये कह रहे हो ना? यस सर. तो मेंस्ट्रुएशन जो आपके यहाँ पे हो रही है, एवरीथिंग इज कमिंग आउट फ्रॉम द वजाइना इन अ फॉर्म ऑफ ब्लड. तो ये आ क्या रहा है? इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी द एंडोमेट्रियम लाइनिंग. जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है वही आपकी फ्लश आउट होकर वहां से आपकी आ रही है. ठीक है, दैट इज द ओनली थिंग व्हिच नहीं बनेगा क्या बेटा? नहीं. सो यू डोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ oocyte फॉर्मेशन ओवर देयर. फॉलिकली डेवलप नहीं हो रहा आपका यहाँ पे, फॉलिकली आपका डेवलप नहीं हो रहा, देन देयर इज नो विंडो ऑफ हैविंग सेकेंडरी oocyte फॉर्मेशन. The only thing which is flushing out is going to be the endometrium lining over there. पता चला पूर्वा? ये सर 7 डेज का गैप इसलिए ले रहे हैं ताकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाए और एंडोमेट्रियम लाइनिंग वॉश अवे हो जाए. Right. So you can find that everything getting washed out from that vaginal tract. Yes. ठीक है? Yes. All right. So that is something we'll find. Now you have this emergency contraceptive. Again, now the thing is, now with emergency contraceptives, ये जनरली ये तब जाते हैं when if a girl has undergone a sexual assault, तो वो टाइम पे यूज किया जाता है, और if there is a likelihood of getting conceived, right? So taken within the 72 hours to avoid the possibility of pregnancy due to rape or unprotected coitus. So unprotected coitus के बाद अगर let's assume the couple are not using any contraceptive, तो ये in that case यहाँ पे consume किया जाएगा. There is something which will be consumed over here and which can ensure that there is no possibility of fertilization happening over here. ठीक है. सो अगेन इट्स अ सिंथेटिक हार्मोन जो हम यहाँ पे यूज करते हैं. इट इज नॉट अ रेगुलर हार्मोन. सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट कि सिंथेटिक हार्मोन कैसे काम करेगा. हाँ जी, तो अनिरुद्ध बताइए. नहीं, अनिरुद्ध बताइए क्या सवाल है आपका? नो सर, वो क्वेश्चन क्लियर किया था. अच्छा, ओके. सर वो 72 आवर्स के बाद नहीं करेगा क्या काम? नहीं, not after 72 hours. It has to be taken within 72 hours. Even the doctors won't even recommend to wait till 72 hours. Even you have to take before that. Okay, and then only you will find the person won't get conceived. So that is why we call them as an emergency contraceptive. अगर आप कोई भी contraceptive use नहीं करे, then this becomes option for protecting yourself from getting conceived. So this is something you have to know, right? तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. सो दीज आर ऑल माय ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जब आपके सामने आएंगे तो आपको दो बेसिक चीजें रखनी है. दे अवॉइड द ओव्यूलेशन, दे अवॉइड द मेंस्ट्रुएशन, राइट? सॉरी, दे अवॉइड द ओव्यूलेशन एंड दे अवॉइड द इम्प्लांटेशन. दैट इज व्हाट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर गोइंग टू डू. और उस तरीके से यू विल गेट टू सी दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग कंसीव्ड. इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड मेरा यहाँ पे आता है, दैट इज योर स्टेरिलाइजेशन. जब भी आपके सामने स्टेरिलाइजेशन यहाँ पे मेथड आएगा, दैट इज अ सर्जिकल मेथड. अब यहाँ पे क्या होता है? In this method is a permanent method. So for example, let's say there is a couple जो अपने mid 40s में है या 30s में है, जो भी है, and they have decided कि they don't want to have a much more family. मतलब उनके already like they have their children. अब उन्होंने decide किया कि they don't want to go beyond that. उनको नंबर उनका नहीं बढ़ाना. So they can go for this sterilization technique. तो यहाँ पे आप क्या करते हो? You go for a surgery. Over here you will be going for the surgery, and when you go for a surgery over here, what we'll be doing? यहाँ पे हम ब्लॉक करते हैं, ब्रेक करते हैं इधर वास डिफरेंस और योर फैलोपियन ट्यूब.
So surgical intervention blocks the gamete transport and thereby prevent the conception. तो याद रखना, अगर कोई सर्जिकल मेथड करता है तो ये रिवर्सिबल नहीं होता. It does not show any kind of reversibility. तो अगर ये हो गया तो ये हो गया. So it's a termination. So once a couple undergoes this kind of surgery, now they cannot get conceived. Okay? तो यहाँ पे दो टर्म्स आपको याद रखने हैं. एक होता है आपके यहाँ पे वासेक्टोमी. सो वासेक्टोमी में यहाँ पे आपका क्या होगा, द वास डिफरेंस जो यहाँ पे होता है उसको हम यहाँ पे कट करके टाई कर देते हैं. वास डिफरेंस जो आपका यहाँ पे होगा इसको हम कट करके यहाँ पे टाई कर देंगे. ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं ट्यूबेक्टोमी की, सो ट्यूबेक्टोमी के अंदर फेलोपियन ट्यूब यहाँ पे कट करके टाई कर दिया जाएगा. तो आपको दो चीज यहाँ पे याद रखनी है. जब भी आपके सामने ट्यूबेक्टोमी टर्म आएगा तो याद रखना यहाँ पे हम बात करेंगे आपके फेलोपियन ट्यूब के बारे में. सो हियर विल बी डिस्कसिंग समथिंग अबाउट योर फेलोपियन ट्यूब. तो यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब को हम कट करेंगे, राइट. और जब हम बात करते हैं वासेक्टोमी के अंदर, तो वासेक्टोमी के अंदर विल बी फाइंडिंग द वास डिफरेंस विल बी कट. यहाँ पे वास डिफरेंस को यहाँ पे कट किया जाएगा. सो वास डिफरेंस को यहाँ पे हम कट कर देंगे. तो अगर आप यहाँ पे वास डिफरेंस को अगर आप यहाँ पे कट करके टाई कर रहे हो, सो दैट इज गोइंग टू बी द एग्जांपल ऑफ योर वासेक्टोमी ओवर हियर. ये जो जनरली आपका मेल्स के अंदर होगा, ऑब्वियसली मेल्स के अंदर होगा. एंड ट्यूबेक्टोमी के अंदर फेलोपियन ट्यूब को कट करके यहाँ पे आप टाई कर रहे हो, राइट. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज बीन डन. और याद रखना, इट इज अ परमानेंट मेथड. एक बार ये हो गया, देन यू डोंट फाइंड, यू कैन नॉट रिवर्स इट बैक. सर बोलिए. सर आपने बोला कि ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को मतलब कट करके टाई किया जाता है, तो फिर मेंस्ट्रुएशन भी ऑकर नहीं होता क्योंकि ओवा वहां से ही रिलीज होता है ना. हाँ, लेकिन अगर ओवा आपका वहां पे नहीं आ रहा तो लेकिन आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग तो आपका बन रहा है ना हर महीने, हर साल, हर महीने. वो तो आपका हार्मोनल इन्फ्लुएंस के अंदर बनेगा. सी अंडरस्टैंड दिस थिंग. आपने इसे यहाँ पे कट कर दिया. सुनो सब लोग ध्यान से, हाँ ये बात याद रखना. अगर हम ट्यूबेक्टोमी कर रहे हैं यहाँ पे, राइट, याद रखना ओवा फॉर्मेशन आपका यहाँ पे होगा. प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफिन फॉलिकल में बनेगा, बिल्कुल बनेगा. बस बात यह है कि आपका ट्रेवल करके आगे तक नहीं आ पाएगा. बात यह है कि कोई चांस नहीं है कि आपका स्पर्म आगे इसके साथ फ्यूज कर सके. आपका वो बन जाएगा, वो रेडी हो जाएगा आपका यहाँ पे, बट बाद में क्योंकि वो आपका लाइक इट कैन नॉट रीच टू द यूट्रस, इट माइट रीच ओवर हियर एंड देन विल गेट कंज्यूम बाय द वॉल. एक टाइम बाद उसे वॉल वहां पे कंज्यूम कर लेगी, राइट. तो जो नॉर्मल हार्मोनल साइकिल जो होता है ना फीमेल के अंदर, वो तो आपका यहाँ पे नॉर्मली रन करेगा. आपके यहाँ पे हॉर्मोन्स आएंगे, आपका प्राइमरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट भी होगा, राइट. दैट एवरीथिंग विल हैपन. ओव्यूलेशन भी आपका यहाँ पे हो रहा है, बट आप सोचो ओव्यूलेशन होने के बावजूद द ओवा कैन नॉट मीट द स्पर्म. कभी भी ओवा कभी भी स्पर्म को आके मिल नहीं सकता. तो अगर ओवा कभी भी स्पर्म को आके मिल नहीं सकता, सो दैट इज हाउ वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी चांस ऑफ गेटिंग कंसीव्ड, राइट. बट क्योंकि आपके यहाँ पे बाकी सारे हार्मोनल इवेंट्स आपके यहाँ पे हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी एंडोमेट्रियम लाइनिंग डेवलप होगी, मेंस्ट्रुएशन आपका यहाँ पे होगा, बट देयर इज नो चांस ऑफ गेटिंग फर्टिलाइजेशन हैपनिंग. ये बात समझ आई तमनप्रीत में क्या कह रहा हूँ? तमनप्रीत पक्का पता चल रहा नहीं चल रहा, सच्ची बताओ. यस सर. सर हर्षिता ने पूछा था. अच्छा, हर्षिता ने पूछा था. हर्षिता समझ आ रही है ये वाली बात, पता चल रही है? यस सर. हर्षिता सच्ची बता, समझ आ रहा नहीं आ रहा? यस सर, समझ आ गया. देखो ये क्योंकि यहाँ पे सारा फॉर्मेशन होगा, इवन फॉर द मेल्स एज वेल. मेल्स के अंदर भी स्पर्मेटोजेनेसिस तो होना ही है, स्पर्म फॉर्मेशन होगा ही होगा. लेकिन यहाँ पे पता है क्या नहीं होगा, मेल गैमेट्स कभी भी यूरेथ्रा तक पहुंच नहीं पाएंगे. बाकी सब चीजें आपकी सेम रहेगी. द स्पर्म फॉर्मेशन विल हैपन, बट द मेल गैमेट्स या स्पर्म्स कभी भी यूरेथ्रा तक पहुंच नहीं पाएंगे. तो जब इजैकुलेशन होगा, अगर कोई पर्सन है जिसने वासेक्टोमी किया है, अगर वो इजैकुलेट कर रहा है तो उसके इजैकुलेशन के अंदर यू विल ओनली हैव द प्रेजेंस ऑफ द सेमाइनल प्लाज्मा. यू विल ओनली हैव द प्रेजेंस ऑफ द सेमाइनल प्लाज्मा. सिर्फ सेमाइनल प्लाज्मा ही उसके इजैकुलेशन में आपको देखने के लिए मिलेगा. देयर वोंट बी अ प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ स्पर्म्स ओवर देयर. दैट मींस आप जानते हो ना सीमन में क्या होता है, दो चीजें होती है, सेमाइनल प्लाज्मा एंड योर मेल गैमेट्स. तो यहाँ पे मेल गैमेट्स आपको नहीं मिलेंगे, बट जो भी आपके जो ग्लैंड होता है, एसेसरी ग्लैंड्स होता है, उसमें से जो भी आपका जो फ्लूइड आता है ना सेमाइनल प्लाज्मा वाला, वो इजैकुलेशन के अंदर होगा, बट इट वोंट हैव द स्पर्म्स. इट वोंट हैव द स्पर्म्स ओवर देयर. ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि मेल्स के अंदर भी स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, बट देयर इज नो चांस कि स्पर्म आपके यूरेथ्रा तक भी पहुंच पाए. दे कैन नॉट रीच ओवर देयर बाय एनी मींस. ओके, सो दिस इज सर वो स्पर्म तो फॉर्म हो रहा है ना, फिर उधर ब्लॉकेज नहीं होगा क्या ज्यादा फॉर्म होने? वो कंज्यूम्ड हो जाते हैं, वो कंज्यूम हो जाए, वो सिर्फ ऑल कंज्यूम कर लेते हैं उन्हें. ठीक है, सो वॉल विल गेट कंज्यूम्ड. ऐसा नहीं होगा कि ब्लॉकेज वहां पे क्रिएट होगा ना, ऐसा कुछ नहीं होगा कि सारे स्पर्म आके रोज इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पे. दैट वोंट बी हैपनिंग, नो ब्लॉकेज ओवर देयर. ठीक है, द वॉल दे विल डाई एंड द वॉल ऑफ द ट्यूब इज गोइंग टू कंज्यूम देम.
ठीक है, दे विल डीजेनरेट हो जाएंगे वहां पे। सेम चीज ओवा के साथ भी यहाँ पे होगी, वो यहाँ पे डीजेनरेट हो जाएगा, उसे वॉल यहाँ पे कंज्यूम कर लेगी। पता चल रहा है रानी यहाँ पे? ठीक है, Yes, sir. ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर्जिकल मेथड आर आल्सो कॉल्ड एज स्टेरिलाइजेशन एंड आर जनरली एडवाइज्ड फॉर मेल एंड फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ चाइल्ड। सो ये टर्मिनल मेथड आपका होता है, बिल्कुल लास्ट मेथड आपका ये, जो एक एडवाइस किया जाता है व्हेन दे आर वेरी श्योर दैट दे डोंट वांट टू हैव एनी मोर चिल्ड्रंस ओवर देयर, राइट। स्टेरिलाइजेशन ह्यूमंस में भी होता है, और अगर आपने देखा होगा एनिमल्स में भी किया जाता है। सो एनिमल्स के अंदर भी काफी किया जाता है। अगर आप लोग हिमाचल वाले लोगों को पता होगा, हिमाचल में तो बंदरों को पकड़ के स्टेरिलाइज कराया जाता है, राइट, बिकॉज दे हैव सो मच पॉपुलेशन इन द हिमाचल कि उनको पकड़ के यू हैव अ प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम फॉर स्टेरिलाइजेशन। तो यहाँ पे बेसिकली यू टेक अ cut from the testes and then you like cut down the vas deferens in the males के अंदर अगर करना होता, right, fallopian tube में it will be a separate thing. So this is something you have to know and it is a permanent method and again it is something which has been done. ये भी कंट्री में काफी होता है, ये कंट्री में काफी किया जाता है, because इसमें फायदा ये हो रहा है that you don't have to now take any pills or you don't have to worry about any other contraceptives, ठीक है, so that is the advantage over here. तो ये आपको यहाँ पे इस तरीके से याद रखना है, राइट। अब एक काम करते हैं, 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट सम क्वेश्चंस नीट वाले एंड फिर आगे बढ़ते हैं। सो गिवन बिलो आर द 4 मेथड्स, 4 मेथड आपके सामने यहाँ पे देख रखे हुए, आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग यहाँ पे आपको करना है। सो फटाफट इन ऑप्शंस को यहाँ पे देखिए और टेक योर टाइम, टेक योर 30 सेकेंड्स एंड टेल मी कहाँ पे कौन सा आंसर यहाँ पे आपका सही से आ जाएगा। सो टेल अस। बस एक ही, बस 3 ही लोग, बस 4, बस 5? हाँ जी बताइए गिरिजा, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। गिरिजा यहाँ पे ऑप्शन सी कह रही है। अक्षर आपको क्या लग रहा है? सी। और अनिरुद्ध आपको क्या लग रहा है? यस सर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप कह रहे हैं यहाँ पे, सही आंसर है आपका यहाँ पे। सो देख लेते हैं ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या कह रहा है। सो द पिल इज गोइंग टू प्रिवेंट ओवुलेशन, सो ये बात आपके यहाँ पे सही है, ठीक है। बी के साथ 1, कॉन्डम के साथ यहाँ पे आपका आएगा प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग द सर्विक्स, सो दैट्स आल्सो गोइंग टू बी ट्रू। सी के साथ आपके यहाँ पे आ जाएगा 4, वासेक्टोमी, सीमन विदाउट कंटेन नो स्पर्म, तो सीमन नो sperm, it will only have the seminal plasma, so yes, and then you can have the copper T going to prevent the implantation, right, ठीक है। तो this is something you have to know over here, ठीक है। तो ये चीज रखना, मैंने कॉपर के बारे में आपको बताया था पहले भी यहाँ पे कि ये आपका it is going to make sure that it is going to ultimately prevent your particularly it is going to reduce the sperm की activity यहाँ पे, right? And after that, what will be happening? You have no possibility of getting any kind of like sperm reaching in the fallopian tube, and there's no possibility of implantation as well, right? So yes, option C मेरा बनेगा यहाँ पे as a most appropriate answer over here. So this becomes my correct answer. ठीक है. What is the work of your copper T over here? So ध्यान से देखिएगा and then try to answer this. जल्दबाजी में कुछ भी मत कर देना. ध्यान से देखो and then raise your hand. बताइए हर्षदा, बताना चाहोगे इसका आंसर क्या होगा? हर्षदा 1 minute रीड कर लो। चलो रीड कर लो। अर्चना आपको क्या लग रहा है, बताइए। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए तो नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि कॉपर टी का कोई रिलेशन सर नहीं है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बोला आपने? ऑप्शन बी। ऑप्शन सर यहाँ पे नहीं होगा। कॉपर टी फर्टिलाइजेशन ही होने नहीं देता। कॉपर टी के बारे में याद रखना, कॉपर टी इज समथिंग जो स्पर्म के मोटिलिटी को कम कर रहा है। कॉपर टी क्या करता है याद रखना, ये आपका कॉपर आयंस को रिलीज करेगा, गोइंग टू रिलीज द कॉपर आयंस, और कॉपर आयंस को रिलीज करने के बाद दोस कॉपर आयंस विल डिक्रीज द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। अगर स्पर्म की मोटिलिटी ही कम हो गई तो फर्टिलाइजेशन ही यहाँ पे नहीं होगा, सो इट इनहिबिट द फर्टिलाइजेशन। सो दिस बिकम्स माय करेक्ट आंसर ओवर हियर। क्या कंफ्यूजन आ रहा है इसके अंदर, बता दो आप मुझे। व्हाट इज द कंफ्यूजन यू हैव ओवर हियर? नो सर। Ovulation, implantation, fertilization, सब कुछ inhibit कैसे? वापस बोलना पूर्व। सर एक में ovulation, अगर वो ovulation inhibit कर रहा है तो वो तो कहाँ implantation पे बोला है ओवुलेशन को इनहिबिट कर रहा है? वो कहाँ पे बोला है? नहीं, जिसमें बोला है। किसमें बोला है? In what? I think you are taking, यहाँ पे कॉपरेटिव बोला है ना बेटा, वो तो वो था LNG20 था, वो आपका हार्मोन रिलीजिंग आईओडी था ना वो तो। Yes. समझा मेरी बात? So that was different. यहाँ पे मेंशन किया इट्स अ कॉपर टी,
अपूर्वा समझ आ रहा है? Yes, sir. That was the one which was reducing the ovulation over here. यहाँ पे तो कॉपर टी आपका कॉपर आयन रिलीज करेगा, उसका काम क्या होता है, स्पर्म को उनका स्पर्म भाग भाग के जो जा रहे होते हैं उनकी मोटिलिटी को कम कर देता है. So that is why it will inhibit the fertilization over here. But अगर हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन या LNG20 की, जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होते हैं, वहां पे आप बात करते हो that over there they are going to reduce, they are going to inhibit the ovulation, right? तो वहां पे आप वो डिस्कस कर सकते हो, but not over here. समझ आ रही मेरे? सर बट वो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग मतलब वो रिड्यूस करता मतलब प्रिवेंट करता है ना फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, उसको हाँ. भी ब्लास्टोसाइट बोलता है ना फिर नहीं, इम्प्लांटेशन ऑफ सुनो प्रिवेंट ऑफ एग सुनो 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 मेरी बात. अगर यहाँ पे कह रहे हैं हम लोग कॉपर आयन रिलीज कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये स्पर्म की मोटिलिटी को कम करेगा, ये स्पर्म की मोटिलिटी को कम करेगा. अगर ये स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज कर रहा है तो क्या स्पर्म मेरा पहुंच पाएगा मेरे कभी भी एक तक? पहले ये बताओ, क्या वो पहुंच पाएगा मेरा स्पर्म एक तक? No. नहीं पहुंच पाएगा. अगर वो पहुंच नहीं पाएगा तो व्हाट इज हैपनिंग, हम यहाँ पे इनहिबिट कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन को, वी आर इनहिबिटिंग द फर्टिलाइजेशन ओवर देयर, राइट? अब जब यहाँ पे लिखा हुआ है इनहिबिट द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस, जब ब्लास्टोसिस यहाँ पे लिख दिया तब ये बात गलत हो जाती है कि यार ब्लास्टोसिस तो तब बनेगा फर्टिलाइजेशन होने के बाद, कॉपर टी फर्टिलाइजेशन ही होने नहीं देता, तो इसलिए ये तो कभी आपका यहाँ पे आंसर बनेगा ही नहीं. देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग दिस एज आंसर. सो इसलिए याद रखना ये कंफ्यूजिंग मतलब इसमें आप गड़बड़ कर सकते हो. तो जब पूछा जाए कॉपर टी क्या कर रहा है, देन यू शुड नो कि कॉपर टी क्या कर रहा होता है. जब पूछा जाए LNG20 क्या करता है, देन यू शुड नो व्हाट इज LNG20 इज डूइंग ओवर देयर. ठीक है, अब क्या ये सारी चीजें सबको यहाँ पे समझ आ, इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? यस सर Yes, sir. जबरदस्ती यस मत बोलो, नहीं यार तो बता दो कि अरे सर. यस सर हाँ ठीक है. What is the work of progesterone which is present in the oral contraceptive pill? अब ये देखो ध्यान से, and then tell me the answer over here. कि यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरोन होता है oral contraceptive pill के अंदर, उसका यहाँ पे रोल क्या आएगा? What kind of role it will be playing over here? So सब लोग सोचिए यहाँ पे, बताइए सिद्रा क्या होगा इसका आंसर? अरे हैंड रेज करना है. सिद्रा बताइए क्या होगा इसका आंसर? सिद्रा यहाँ पे कह रहे ऑप्शन ए. यहाँ पे राजू आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए सर. शिव आपको क्या लग रहा है? Sir, same sir, option A. ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ये आपके यहाँ पे ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करेगा. सो दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का क्या होता है? अनम्यूट करके वैसे ही बता दो. प्रोजेस्टेरोन. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. दैट विल बी करेक्ट आंसर ऑन दिस, राइट? ट्यूबेक्टोमी इज अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच, ट्यूबेक्टोमी एक मेथड है स्टेरिलाइजेशन का किसके अंदर? तो ध्यान से देखो यहाँ पे और बताओ यहाँ पे कौन सा आंसर आपके यहाँ पे सही बैठ सकता है. सिंपल क्वेश्चन. अरे हैंड रेज करना है, हैंड रेज किया. काजल बताओ क्या होगा इसका आंसर? काजल. ऑप्शन ए सर. महेश क्या होगा इसका आंसर? Option A. ऑप्शन ए ही आपके यहाँ पे सही आंसर होगा. ट्यूबेक्टोमी मींस अ स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप. तो एक बार हम इसे कर देते हैं, देन इट्स अ परमानेंट वे ऑफ making sure that the girl won't get conceived. So yes, it is something you have to know. बाकी कोई टिक मत करना, ovaries remove surgically, ये सब नहीं करना है आपने. It is specifically ट्यूबेक्टोमी के अंदर fallopian tube की हम यहाँ पे बात करेंगे. One of the following is not a method of contraception. इनमें से कौन सा एक मेथड नहीं है कॉन्ट्रासेप्शन का? बताओ हैंड रेज करके. तमनप्रीत क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी. क्या Option D. डेली वाला डी करो आप लोग. ऑप्शन ए. Yes, sir. आप लोगों को मिलते हैं -25. सर ऑप्शन ए. लेके जाना मेरे साथ. सॉरी सर. ये मोनिका ए के लिए, मोनिका इज एज ऑप्शन. मोनिका हैज टू बी शिफ्टेड. सॉरी बी. ब्रैकेट वाला स्टेट से रिमूव कर रहा है. ऑप्शन बी सर. ऑप्शन बी. अरे बाबा इस गोइंग टू बी ऑप्शन बी ओवर है. ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल भी कोई सेंस नहीं करता ना. यहाँ पे देखो तो आप यहाँ पे तो वो पढ़ा ही नहीं था तो तो वही गलत हो गया बेटा. -5 -25 हो गया. अब क्या कर सकते हैं? सो पिल्स ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, इनका कोई रोल नहीं होता. ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन हैज नो रोल इन कॉन्ट्रासेप्शन. सो याद रखना ऑप्शन बी ही मेरे यहाँ पे सही आंसर आएगा. पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. सो ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन. इनका कोई रोल यहाँ पे नहीं होता कॉन्ट्रासेप्शन को लेके. सो दैट इज व्हाई दिस विल बिकम अ करेक्ट आंसर. सो ये याद रखना, ये सिंपल सा सवाल था बेटा. कॉन्डम्स, लिपी लूप्स एंड ट्यूबेक्टोमी, ऑल ऑफ देम आर कॉन्ट्रासेप्टिव के मेथड यहाँ पे आ जाता है. ऐसे क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते हैं. यू कैन नॉट डू सच वो क्वेश्चन. सर वो परमानेंट मेथड था ना इसलिए वहाँ पे. नहीं, स्टिल दैट्स नॉट अ
राइट रीजन which what is the figure given below showing in particular? ये जो पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे हो, पिक्चर आपको क्या बताने की यहाँ पे कोशिश कर रही है? अगेन रेज योर हैंड टू आंसर दिस. वैसे आंसर कोई नहीं करेगा, हैंड रेज करो. सो कौन इसका देगा आंसर यहाँ पे? बताइए दीक्षा, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी. एंड अनिरुद्ध क्या लग रहा है? यस सर, ऑप्शन सी. ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर. बिल्कुल सी, ट्यूबेक्टोमी. आपके यहाँ पे सही आंसर है. आपके यहाँ पे दैट इज अ पिक्चर ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन द with the female fallopian tube is being cut and tied over here, right? Which of the following is most widely accepted method of contraception in India at present? सबसे widely accepted, जिसे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है इंडियन वुमेन ने, वो आपका यहाँ पे कौन सा होगा? बताइए गिरिजा, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी. दीपिका, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी. यस, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर. आईओडीज आर बीन वाइडली एक्सेप्टेड इन द कंट्री. ये आपके वाइडली एक्सेप्टेड किया गया है कंट्री के अंदर, जो मैं आपको ऑलरेडी एक से ज्यादा बार बता चुका हूँ. ठीक है, सो वी आर डन विद दिस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एमटीपी. सो व्हाट इज एमटीपी? एमटीपी स्टैंड फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. सो एमटीपी का यहाँ पे फुल फॉर्म आपका यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे. दिस स्टैंड फॉर अ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. सो मेडिकल termination of pregnancy. This is a full form of the MTP. अब बात यहाँ पे आती है, full form तो चलो ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं. This is something you can all remember. The thing which you have to understand here is कि MTP is a way of abortion actually. It is a clinical way of abortion. अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो आपके यहाँ पे की जा रही है, ये एक डॉक्टर के गाइडेंस में ये की जाती है और इसको लीगलाइज किया गया था इन द ईयर ऑफ 1971. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना, इसको लीगलाइज किया गया था इन द ईयर ऑफ 1971 के अंदर एमटीपी लीगलाइज किया गया था, राइट? अब एमटीपी जो कराया जाता है, याद रखना, इट कैन बी डन ओनली इन सर्टेन कंडीशंस. अगर कोई कपल आके कहता है दैट वी हैव टू कैरी आउट एमटीपी बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग अ फीमेल चाइल्ड, देन दैट इज इलीगल. वो आप नहीं कर सकते, राइट? ये पहले किया जाता था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जाता था वंस आफ्टर नोइंग द सेक्स ऑफ द बेबी. दे यूज्ड टू डू दैट, बट अभी ये नहीं वैसे किया जाता. इट इज नॉट अलाउड. यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट ऑब्वियसली. आपको याद ये रखना है, या आपको समझना ये है कि ये कौन सी कंडीशन में किया जाना अलाउड है. व्हेन यू कैन कैरी आउट दिस अबॉर्शन लीगली, किस कंडीशन में ये किया जा सकता है. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दोस थिंग. यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कुछ चीजों को जो रीजंस हो सकते हैं, which are the reasons under which MTP can be carried out under the guidance of a doctor. एक रीजन आपका हो सकता है if the fetus has chromosomal disorder. If the fetus has chromosomal disorder. अगर fetus के अंदर chromosomal disorder है, then one can go for the MTP. Then doctor advice करेगा and then under the guidance of the doctor one can go for the termination of the pregnancy. It's a surgical procedure, याद रखना. और उसके बाद you get rid of the fetus over there. Okay. Second reason आपका हो सकता है if there is a risk to the mother and the fetus. अगर pregnancy से risk है, risk to mother, mainly mother, in that case one can go for the MTP. अगर लग रहा है कि जो प्रेगनेंसी हुई है, सही हो सकता है कई बार दैट देयर माइट बी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और वो प्रेगनेंसी कुछ ऐसी कंडीशन में बनी है जो मदर के लिए रिस्की है. या ऐसा हो सकता है दैट द गर्ल हैज गॉट कंसीव्ड इन अ वेरी अर्ली एज एंड दैट इज रिस्की फॉर द मदर, राइट? तो अगर मदर को रिस्क होता है, किसी भी लाइफ थ्रेटनिंग का रिस्क हो सकता है, देन वो टाइम पे टर्मिनेट किया जा सकता है यहाँ पे प्रेगनेंसी को. सो देन यू कैन गो फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, राइट? थर्ड थिंग यहाँ पे याद रखना, under a case of sexual assault, under a case of sexual assault, if a girl has undergone a sexual assault, then in that case one can go for the MTP, right? So उस condition के अंदर a doctor can approve for the MTP and that can be done without any issues. One can go for the MTPs, right? तो ये तीसरा रीजन आपका यहाँ पे हो गया. चौथा रीजन आपका ये हो सकता है that failure of the contraceptive. Failure of contraceptive. Let's assume that कि किसी कपल ने आईओडी कराया था, इंट्रा यूट्रिन डिवाइस यूट्रस में इंसर्ट कराया था,
और वो किसी रीजन से काम नहीं किया, या फॉर सम रीजन इट गॉट इजेक्टेड आउट, या कोई रीजन था जिसके वजह से वो काम नहीं किया, ओके, सो इन दैट केस ऑल्सो दे कैन गो फॉर द एमटीपी, क्योंकि दे हैव अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर दे हैव गॉन फॉर द इम्प्लांटेशन इन द यूट्रस, और अगर वो किसी रीजन से अगर काम नहीं करता है या इजेक्ट आउट हो जाता है, एंड इफ द गर्ल गेट कंसीव्ड, तो वो टाइम पे दे कैन गो फॉर द एमटीपी। तो ये भी एक कंडीशन होती है जिसके अंदर एमटीपी किया जा सकता है, राइट। एंड फिफ्थ वन इज गोइंग टू बी to avoid unwanted pregnancy, to avoid unwanted pregnancy. So अगर एक कपल अवॉइड करना चाहता है प्रेगनेंसी को एक उनके अर्ली स्टेज के अंदर आफ्टर मैरिज, देन दे कैन गो फॉर द एमटीपी, राइट। सो इफ दे वांट टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर हो रही है, देन इन दैट केस दे कैन गो फॉर द एमटीपी ओवर देयर। सो ये कंडीशंस आपकी यहाँ पे होती है जिसके अंदर एमटीपी कराया जा सकता है। यू कैन टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, दैट मींस यू कैन एक्चुअली क्लिनिकल तरीके से आप यहाँ पे अबॉर्शन करा रहे हो, ओके। अब आपको यहाँ पे एक और बात याद रखनी है कि ये जो एमटीपी कराया जाता है इट इज सेफ अंटिल द 12 वीक्स। ये बात भी याद रखना कि ये सेफ होता है टिल द 12 वीक्स के लिए। सो इट इज गोइंग टू बी सेफ, इज गोइंग टू बी सेफ टिल द फर्स्ट ट्राइमेस्टर या 12 वीक्स तक, 12 हफ्तों के अंदर इसको कराना सेफ रहता है। अब अगर कोई 16th वीक में या 20th वीक पे जाके अगर एमटीपी कराने के लिए जाता है, देन उसके अंदर रिस्क रहता है दैट समथिंग माइट गो रॉन्ग एंड इट हैज अ रिस्क टू द मदर एज वेल। मदर के लिए वहां पर रिस्की हो जाएगा थोड़ा सा। सो दैट इज वाई जब भी एमटीपी कराई जाती है इट हैज टू बी डन विद इन द 12 वीक्स। 12 वीक्स के अंदर कराना सेफ रहता है, बियॉन्ड दैट इट इज स्लाइटली अनसेफ। तो इसके रीजंस डॉक्टर आपके साथ शेयर कर देगा। हाँ जी तवनप्रीत बताइए। सर थर्ड वन वाला समझा ना रीजन? Sexual assault wala. So let's say if a girl unfortunately has undergone a rape, then in that case they can go for the MTP, right? Because that's when she has undergone a sexual assault, na? So wo time pe the doctor and the team can actually promote the undergoing MTP because they want to avoid this pregnancy. So that can happen. ये उस time पे ये करा जा सकता है। तवनप्रीत पता चला? यस सर। ठीक है। सो दीज आर द रीजंस ओवर देयर, दीज आर द मेन रीजंस जहां पे एमटीपी किया जा सकता है। एंड याद रखना लीगलाइज इसे किया था हमने 1971 के अंदर, और ये कितने हफ्तों तक सेफ होता है? 12 वीक्स तक। टिल द 12th वीक इट इज गोइंग टू बी सेफ। बियॉन्ड दैट आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर फिर वो थोड़ा अनसेफ होता है। सो वो आपका पे अनसेफ हो जाएगा। देन अगर वो कराना हो देन देयर इज अ पोटेंशियल रिस्क टू द मदर एंड डॉक्टर विल लेट दैट मदर नो कि फिर वो उसमें तो आपको थोड़ा रिस्क रहेगा। ठीक है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, या जो बताया वो याद रखना है यहाँ पे। ओके, आई होप इसमें कोई किसी को सवाल नहीं, और आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। सो इंटेंशनल या वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म, राइट, उसे हम कहते हैं यहाँ पे एमटीपी। इंड्यूस अबॉर्शन, जिसे हम इवन कहते हैं यहाँ पे इंड्यूस अबॉर्शन। सो 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world. So इतने MTPs किए जाते हैं throughout the world, right? काफी कंट्रीज में इसको लेके काफी एथिकल क्वेश्चन भी आता है। एथिकल क्वेश्चन ऐसा आता है कि अलाउ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। काफी लोग कहते हैं कि अलाउ नहीं करना चाहिए, काफी लोग कहते हैं दैट इट इज कंप्लीटली फाइन इफ पीपल आर नॉट रेडी फॉर दिस देन दे कैन गो फॉर एमटीपीज। सो इट इज समथिंग व्हिच हैज बीन डिबेटेबल है। ओके, सो ये इतना थ्रू आउट द वर्ल्ड कराया जाता है। 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसीज इन अ ईयर। सो जितनी प्रेगनेंसी हो रही है उसके 1/5 तो एमटीपी के थ्रू आप यहाँ पे लाइक यू आर इंड्यूसिंग द अबॉर्शन ओवर हियर, राइट। इंडिया में इसका कंसर्न था एमटीपी हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन थ्रू दो इट इज नॉट मेंट फॉर दैट पर्पस। ठीक है, एमटीपी का पर्पस क्या था मैंने आपको पहले बता दिया। अंडर सेक्सुअल असॉल्ट, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव काम नहीं कर रहा, इन दोस कंडीशन यू कैन गो फॉर द एमटीपी। या अगर मे बी अगर फीटस को कोई डिसऑर्डर है या मदर को कोई रिस्क है तो उसमें आप एमटीपी करा सकते हो। इसका ये रीजन नहीं था कि पॉपुलेशन को कम करने का रीजन ये नहीं था, राइट। इट वाज मेंट फॉर सम अदर पर्पसेस। ओके, इन 1971 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज द एमटीपी, राइट। तो बट याद रखना इसको हमने रिस्ट्रिक्ट करना था फीमेल फिटेसाइड को। ओके, तो इसलिए कुछ लीगल फ्रेमवर्क हमने यहाँ पे डाला था ताकि हम बता पा सके एक डॉक्टर को कि उसको कौन सी कंडीशन के अंदर एमटीपी करना है, राइट। उसके पहले पीपल वर डूइंग द एमटीपीज टू गेट इट ऑफ द फीमेल चाइल्ड। ये काफी कॉमन था इंडिया के अंदर, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड टू अ ड्रास्टिक लेवल। ओके, सो ये बात आपको यहाँ पे आ रही है। दिस इज द इंफॉर्मेशन यू हैव टू नो। अब इसके ऊपर बेस यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे एक्सपांड एमटीपी एबीसीडी क्या होगा इसका आंसर जल्दी बताओ। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी।
राइट, ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर ओवर हियर. ठीक है. नीड फॉर एमटीपी, सो टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी, इसके लिए एमटीपी किया जाता है. राइट. अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो लड़की यहाँ पे स्ट्रिप देख रही है, ये स्ट्रिप पे देखने के बाद उसे पता चल गया दैट शी इज प्रेग्नेंट. मुझे बताओ ये स्ट्रिप क्या डिटेक्ट करती है जिसके से पता चलता है दैट द गर्ल इज प्रेग्नेंट? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन. बिल्कुल सही. आई होप सबको याद आ रहा है. आई होप ये बात सबको याद आ रही है. मुझे 4-5 मिनट की आवाज रही है, लड़कों को भी याद आ रहा है. इट इज गोइंग टू बी योर HCG. HCG डिटेक्ट किया जाता है यूरिन के अंदर एंड दैट इज द इंडिकेटर दैट प्रेगनेंसी इज गोइंग टू बी देयर. ओके. सो अनवांटेड प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए सेकंड रीजन आप यहाँ पे, कंटिन्यूएशन ऑफ अ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल टू बोथ मदर एंड फीटस. सो अगर वो हार्मफुल है मदर और फीटस के लिए प्रेगनेंसी, इवन इन दैट केस यू विल गो फॉर द एमटीपी. सो भी किया जाता है. बेसिकली मदर को आप यहाँ पे अकाउंट में लेते हो. ठीक है. सो नीड ऑफ एमटीपी सेफ क्या है? अप टू 12 वीक्स. 12 वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर, अगर तब तक अगर आप कर रहे हो एमटीपी, दैट्स गोइंग टू बी सेफ. परफॉर्म बाय क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल. आई थिंक इट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल कि ये करने के लिए यू नीड टू हैव अ डॉक्टर, नॉट इवन नर्स. दिस हैज टू बी डन अंडर द गाइडेंस ऑफ अ डॉक्टर, राइट. And it should be restricted for the fetal sex determination. उसके लिए इसे restrict करना चाहिए because वो करके people get rid of the child, so that should be avoided. Okay, so simple सा टॉपिक था आपका यहाँ पे. अब बताओ इसमें से कौन सा यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे सीखा. Following statement are given regarding MTP. Choose the correct option given below. इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे सही रहेगा. Choose the correct option given below. इसके लिए आप हैंड रेज कर लो. चलो हैंड रेज कर लो इसके लिए. हैंड रेज कर लो फटाफट इसके लिए. चलिए बताइए रानी, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी सर. अच्छा, अपूर्व आप क्या कह रहे हो? सर डी. जानवी आपको क्या लग रहा है? डी सर. एंड अनिरुद्ध आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी. शिवा आपको क्या लग रहा है? शिवा. सर सेम डी सर. अरे प्रखर आप भी बोलो, आपको क्या लग रहा है? प्रखर. It is going to be your option D. So MTP are generally advised during the first trimester. ये बात आपके यहाँ पे सही है. और जो स्टेटमेंट सी आपका यहाँ पे, ये भी आपका सही है. MTP requires assistance of a qualified medical personnel. So that is going to be your, yeah. ठीक है, ऑप्शन डी. So these are the notes, you can have a look at them. Termination of pregnancy को हम कहते हैं यहाँ पे as a MTP. लीगल कब हुआ था? 1971 के अंदर. ये बात याद रखना है यहाँ पे. And it prevents the unwanted pregnancy, and we have just discussed कि कौन से कंडीशन के अंदर आप ये करा सकते हो. Okay, so second trimester के अंदर ये थोड़ा रिस्कियर हो जाता है. मैंने अभी बोला था आपको कि 12 वीक के बाद it's going to be, yeah, it has some risk over there. Okay, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ पे मेन टॉपिक, that is your sexually transmitted disease. So let's start with the, how much time we have? Oh, we have ample amount of time, no? Let's start with the STD. तो चलिए हमारा STD वाली बात हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. So STD स्टार्ट करने के पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आप यहाँ पे आंसर बताओ, रिकॉल करते थोड़ा सा. So you have a medical termination of pregnancy is considered 12 weeks. ऑप्शन सी. option. All right, सही है. Now which of the following statement is wrong? Wrong regarding the medical termination of pregnancy. इसके लिए हैंड रेज करना. क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हैंड रेज करेंगे आप लोग यहाँ पे. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे रॉन्ग है? रॉन्ग बताना है, ठीक है. बताइए दीपिका, क्या होगा इसका आंसर? दीपिका बोलिए. दीपिका, क्या आपको में हमारी आवाज आ रही है? Why have सर to ऑप्शन repeat? ए. ऑप्शन नहीं करो आप. सर ऑप्शन ए. गिरिजा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए. ऑलराइट, अनिरुद्ध क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए. यस, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर, बिकॉज दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. पूछा गया आपसे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे रॉन्ग है. इन इंडिया इट इज इलीगल अप टू 20th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी. नहीं, ये एमटीपी लीगल नहीं होता 20th वीक के. ये काफी रिस्की हो जाता है वो टाइम पे. So that is going to be a wrong statement. So that's going to be a correct answer basically. बाकी सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है. MTP cannot be done without surgery. ये बात आपकी सही है, सर्जरी करनी ही पड़ती है उसके अंदर. MTP are considered to be relatively safe during first trimester. ये बात भी आपके यहाँ पे सही हो जाती है. Okay, so ध्यान से देखना, ऐसा नहीं कि हमेशा ऑप्शन डी करना है. So that's our option A. MTP are required for. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप मुझे बता सकते हो हैंड रेज करके. MTP is been required for.
बताइए अर्चना, क्या होगा इसका आंसर? बोलिए अर्चना, अर्चना वर्मा बताइए। ऑप्शन डी। अच्छा, अपूर्वा क्या लग रहा है? सर डी। दीक्षा क्या लग रहा है? दीक्षा, ऑप्शन डी। राइट, ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, टू अवॉइड हार्मफुल प्रेगनेंसी। हार्मफुल प्रेगनेंसी मतलब जो मदर के लिए हार्मफुल हो सकती है। सो यस, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर वैसे ही बता दो अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन राइट, ठीक है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 5, एमटीपी आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर, एमटीपी आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर अगेन, oh it is been restricted for what? डी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन डी आएगा इसके अंदर ऐसा? बैटमैन वाला बी, ऑलराइट, ठीक है, ऐसे बोलो ना, फिर ऐसे थोड़ी समझ आएगा मुझे, राइट। इज इट ऑप्शन बी, इट इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, इसके लिए आप नहीं कर सकते हैं, लाइक ओके, यू डोंट डू दैट फॉर दिस। सो ऑप्शन बी बैटमैन वाला, ओके। ऑलराइट, चलिए, सो लेट्स टॉक अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सो बेसिकली जो ट्रांसमिट होती है बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स, राइट, व्हिच आर कॉल्ड एज, इनका एक और नाम यहाँ पे होता है, वी आल्सो कॉल देम एज अ वेरिनल डिजीज, हाँ जी, एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, इनके लिए और दो नाम आपके यहाँ पे आ जाते हैं, वेनरल डिजीजेस एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी इसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एज एसटीडी, ओके। These diseases will be caused because of the sexual intercourse, as simple as that, right? अभी हमें यहाँ पे क्या देखना है? यहाँ पे है कुछ बीमारियां, या गोनोरिया, सिफाइलस, ट्राइकोमोनासिस, क्लैमिडियासिस, जेनाइटल वार्ट्स, हर्ब्स, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स। तो ये कुछ आपके यहाँ पे बीमारी है। नाउ लेट्स ट्राई टू सी समथिंग अबाउट देम। अब जो मैं यहाँ पे बताऊंगा वो ध्यान से सुनना, बिकॉज यहाँ से कई बार अच्छे क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। सो पहली चीज याद रखना कि जब भी हम बात करते हैं एसटीडीज के बारे में, whenever we discuss about the STDs, आपको यहाँ पे याद रखना है दैट इनके कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अब हर एक बीमारी के सिम्टम्स अलग अलग हमें यहाँ पे पढ़ने नहीं है, वी जस्ट हैव टू सी सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ द एसटीडीज। अगर किसी को एसटीडी होता है तो उसके कॉमन सिम्टम्स आपको क्या मिलेंगे जनरली? सो लेट्स ट्राई टू सी द कॉमन सिम्टम्स ओवर हियर। अगर मैं कॉमन सिम्टम्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, सो आई कैन हैव अ सिम्टम्स लाइक योर burning sensation, just wait a minute, we'll have a symptom like burning sensation in genitalia, that's one thing. Pain and itching, pain in the genitalia, pain and itching is going to be another symptom. Low grade fever कई बार आपको मिलता है कॉमनली देखने के लिए, लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर मतलब आपको 101, 102 जितना आपको बुखार आना, दैट्स कॉल्ड एज अ लो ग्रेड फीवर। सो लो ग्रेड फीवर यहाँ पे कई बार आपको देखने के लिए मिल जाता है। समथिंग लाइक एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन इज वेरी कॉमन इन मेनी ऑफ द एसटीडीज। एब्डोमिनल पेन आपका यहाँ पे काफी ज्यादा कॉमन हो जाता है, राइट। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन is also very commonly seen in the STDs। कई बार क्या होता है, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने के बाद कई बार जैसे यूरेथ्रा हो गया या एपिडेमिस हो गया, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन होते हुए आपको दिख जाता है। सो दैट इज व्हाई इन्फ्लेमेशन इज आल्सो वेरी कॉमन ओवर हियर, ओके। एंड डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड, ये भी बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द जेनिटेलिया, डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड, discharge of fluid from genitalia। अरे वाह, किसी के यहाँ पे क्रिकेट की आवाज आ रही है। क्रिकेट मतलब वो इंसेक्ट वाला क्रिकेट, घूमरा वाला क्रिकेट? यस सर। हाँ, ठीक है। सो नाउ दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। ये जो है ना, ये आपके होंगे यहाँ पे कॉमन सिम्टम्स। प्लीज याद ना, ये जो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए यहाँ पे। समवन हैज अ क्वेश्चन, बताइए सिद्रा, क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। नो सर। अच्छा, ओके। सर मेरा फर्स्ट पॉइंट को तो समझा लीजिए, पर समझ नहीं आ रहा। समझाता हूँ। पहले से लिखता हूँ कि ये हमारे यहाँ पे कॉमन सिम्टम्स।
कॉमन सिम्टम्स ऑफ द एसटीडीज। हम देखते हैं यहाँ पे इनका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है। बर्निंग सेंसेशन मतलब लाइक एक जलन जैसा फील होना जेनिटलिया के अंदर, लाइक इट कैन बी इन द पीनस और इन द वजाइना, द बर्निंग सेंसेशन होना, उसे हम कहते हैं जलन जैसी फीलिंग वहां पे आना, राइट, उसे हम कहते हैं बर्निंग सेंसेशन। ठीक है, उसके बाद पेन एंड इचिंगनेस, तो इट सिंपल वैसे दर्द होना, इचिनेस आना, जैसे लाइक यू हैव इचिनेस ऑन द स्किन, वो होना। लो ग्रेड फीवर काफी कॉमन होता है। अल्सर फॉर्मेशन भी आपको कई बार दिखता है इसके अंदर, बट वो मेंशन नहीं कर रहा है यहाँ पे। लो ग्रेड फीवर मिल जाएगा। एब्डोमिनल पेन, लोअर बैक में या लोअर रीजन के अंदर पेन होना, एब्डोमिनल रीजन के अंदर पेन होना, राइट। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन होना, आपके अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होना कई बार, दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच इज बीन सीन, राइट। एंड डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द जेनिटलिया, कई बार फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, येलोइश ग्रीनिश फ्लूइड डिस्चार्ज होगा जेनिटलिया में से, सो दैट इज समथिंग व्हिच कैन बी सीन आल्सो हैपनिंग, ये भी चीज होते हुए कई बार देखी जाती है। सो दीज आर ऑल गोइंग टू बी द कॉमन सिम्टम्स, ये सारे आपके यहाँ पे कॉमन सिम्टम्स होते हैं एसटीडी के, राइट। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। आई होप सब लोगों को यहाँ पे सिम्टम समझ आ रहे हैं। किसी भी बच्चे को सिम्टम को लेके कोई टर्म समझ नहीं आ रहा तो बता दो, स्पेशली किड्स फ्रॉम उत्तराखंड, क्योंकि कई बार कुछ इंग्लिश टर्म आपको समझ नहीं आ सकते, तो प्लीज बता दो यहाँ पे। आई होप सारे टर्म्स आप सबको यहाँ पे क्लियर है। आर द टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, yes, यस सर। yes, sir. तो ये आपके यहाँ पे कॉमन सिम्टम्स। सो नाउ लेट्स सी कुछ डिजीज को यहाँ पे हम देखते हैं, लेट्स ट्राई टू सी फ्यू थिंग्स अबाउट देम। सो लेट्स स्टार्ट विद, लेट मी जस्ट फाइंड I don't have a cloth right now nearby me. Okay, so now let's start with something like your syphilis. सिफिलिस में क्या होगा इसको हम यहाँ देखते हैं कि सिफिलिस वाली जो कंडीशन यहाँ पे होती है इसके अंदर आपको क्या देखने के लिए आपको मिल सकता है। लेट्स ट्राई टू सी दिस। अब याद रखना, दिस इज कॉज्ड बाय ट्रिपेनोमा पैलिडियम, दैट इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया। सो ट्रिपेनोमा पैलिडियम याद रखना, ये है आपका नाम एक बैक्टीरिया का, और ये बैक्टीरिया कॉज करता है सिफिलिस, राइट। सिंपल सी बात है, सिफिलिस समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग ऑफ द सेक्सुअल कांटेक्ट। सो मैं यहाँ पे बस लिखूंगा यहाँ पे आपका एससी, यहाँ पे जब भी मैं यहाँ पे एससी लिखूंगा तो याद रखना इट इज योर सेक्सुअल कांटेक्ट, ठीक है, साइंस नहीं है ये, इट इज योर सेक्सुअल कांटेक्ट। सो इट इज आल्सो हैपनिंग बिकॉज़ इट्स एसटीडी ना, सो इट विल ऑलवेज हैपन बिकॉज़ ऑफ सेक्सुअल कांटेक्ट, ओके। अब ये जब किसी को बीमारी होती है, सो ऑल द सिम्टम्स जो यहाँ पे मेंशन किए थे वो आपको यहाँ पे इसके अंदर भी देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, राइट। बट सिफिलिस के साथ इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके भी कई सारे स्टेज होते हैं। यू विल हैव अ फर्स्ट स्टेज, यू विल हैव अ सेकंड स्टेज, यू विल हैव अ थर्ड स्टेज। तो इसके अंदर आपको कई सारे स्टेज आपको मिलते हैं यहाँ पे। यू विल हैव बेसिकली 3 स्टेज। यू विल हैव द फर्स्ट स्टेज ओवर हियर, देन यू विल हैव अ सेकंड स्टेज, एंड देन यू हैव अ थर्ड स्टेज। सो 3 स्टेजेस आपको यहाँ पे मिलते हैं देखने के लिए। अब हर एक स्टेज के अंदर आपके सिम्टम्स यहाँ पे अलग होंगे। हर एक स्टेज के अंदर यहाँ पे आपके सिम्टम्स अलग होते हैं। जैसे अगर मैं पहले स्टेज की बात करूँ तो यू कैन हैव अल्सर फॉर्मेशन ऑफ जेनिटलिया, पेन होगा यहाँ पे जो हमने बात किया था, पेन यू विल हैव, यू कैन आल्सो हैव द अल्सर फॉर्मेशन। अल्सर फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे हो सकता है आपकी जेनिटलिया के ऊपर, राइट। सो अल्सर एंड पेन इज गोइंग टू बी वेरी कॉमन ओवर हियर। जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑलराइट, okay, so you have a pain and ulcer is very common in this condition. Then you have a second stage. अगर इसको ट्रीट नहीं कर रहे तो सेकेंड स्टेज में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, दैट विल हैव अ जॉइंट पेन। जॉइंट पेन इज ऑब्जर्व्ड ओवर हियर, राइट। विल हैव अ हेयर लॉस, जॉइंट पेन, ये सब आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा। हेयर लॉस, जॉइंट पेन कैन बी सीन हैपनिंग ओवर हियर, राइट। स्वेलिंग कैन बी सीन, स्वेलिंग इन जॉइंट्स कैन बी सीन, ओके। और अभी भी अगर इसका हम ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते ना, देन यू कैन हैव अ थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज इज वेरी लाइक डैमेजिंग। यहाँ पे यू कैन हैव अ ब्रेन डैमेज। यहाँ पे आपका बैक्टीरिया पूरे बॉडी को हाईजैक कर चुका है। सो हियर यू विल हैव अ ब्रेन डैमेज एंड दैट कैन लीड टू पैरालिसिस एज वेल। तो उस कंडीशन के अंदर नाउ यू विल हैव अ पैरालिसिस भी आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे मिल सकता है। सो ये बड़ी सीवियर कंडीशन आपकी होती है थर्ड स्टेज। तो ये बात याद रखना आप यहाँ पे कि इसके अलग अलग स्टेज होते हैं। थर्ड स्टेज अगर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे अगर आप यहाँ पे, then that can lead to a brain damage or that can lead to paralysis। ये आपको यहाँ पे इतना सीवियर यहाँ पे ये हो सकता है, ओके। अब सवाल यहाँ पे था कि क्या ये ट्रीटेबल है? यस, इट इज गोइंग टू बी क्यूरेबल। तो याद रखना ये कंडीशन आपके यहाँ पे क्यूरेबल है, बिल्कुल आपके यहाँ पे क्यूरेबल है। सो दिस कंडीशन इज गोइंग टू बी क्यूरेबल। ये आपका यहाँ पे क्यूरेबल आपका यहाँ पे हो जाता है। और याद रखना इसको ट्रीट करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, विल बी यूजिंग
पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक्स, राइट? यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेनिसिलिन और कई सारे एंटीबायोटिक्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो आपको याद रखना है यहाँ पे एज अ ATB, एंटीबायोटिक्स हम यहाँ पे यूज करते हैं, राइट? ATB स्टैंड फॉर एंटीबायोटिक। अब आप बोलोगे नहीं तो ये क्या लिखा हुआ है? सो एंटीबायोटिक्स कैन बी यूज्ड ओवर हियर, और इसको यूज करके इसको आप ट्रीट कर सकते हो। अब याद रखना, जब भी कोई एसटीडी होती है, मच बेटर टू ट्रीट देम इन अर्ली स्टेज देन टू वेट फॉर द लेटर स्टेजेस ओवर हियर। हाँ जी मोनिका बताइए। सर थर्ड स्टेज में भी ये क्योर हो सकती है? क्या कह रहे हो आप? थर्ड स्टेज में क्या इसे क्योर किया जा सकता है? हाँ, क्योर इसे किया जा सकता है, बट तब तो काफी डैमेज हो चुका होता है। अगर समझो पैरालिसिस हो चुका होगा, अगर आपके कुछ नर्व्स अगर डैमेज हो चुके होंगे, तो आप उसे वापस ठीक नहीं कर सकते, राइट? सो थर्ड स्टेज तक अगर आप पहुंच गए, तो थर्ड स्टेज पे जो डैमेज आपका हो गया ब्रेन को लेके, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, राइट? हाँ, यू कैन, जो लोड होगा इस बैक्टीरिया को आप कम कर सकते हो, बट दैट इज द केस ओवर देयर। सो कुछ चीजें रिवर्स नहीं हो पाएंगी फिर। समझ आ रही मेरी बात मोनिका? यस सर। जो न्यूरॉन्स गए वो गए, राइट? उसको आप वापस से रिवाइव नहीं कर सकते इसके अंदर। सो दिस इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग इन द सिफाइलिस, एंड अगेन समथिंग व्हिच हैपेंस विद सेक्सुअल कांटेक्ट। सो ये हो गया हमारा डिजीज नंबर 1, राइट? देन यू कैन हैव समथिंग लाइक योर, अच्छा बाय द वे सबको आई गेस यहाँ पे सिफाइलिस क्लियर है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सिफाइलिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. साइंटिफिक नाम याद रखना बैक्टीरिया का, और याद रखना इट इज अ बैक्टीरिया। हाँ, ये भी याद रखना, इट इज अ बैक्टीरिया। कई बार उन्होंने पूछ लिया कि क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उसमें आप लोग गड़बड़ कर दोगे, आप बोलोगे सर ने तो बताया था नहीं ये सब। सो याद रखना इट्स गोइंग टू बी अ बैक्टीरिया, एंड दिस सर बैक्टीरिया पेन और क्या है वो, पेन और क्या बेटा, क्या? Pally- पैलिडियम, फर्स्ट स्टेज में? PLLIDUM। पेन अल्सर। नहीं फर्स्ट स्टेज अच्छा, पेन और, TREPENOMA। अरे सर वो नहीं, फर्स्ट स्टेज अल्सर पूछ रही है, पेन एंड अल्सर। पेन एंड अल्सर। पेन के साथ वहां पे अल्सर लिखा हुआ है। सो सर अल्सर, वो दिखाई नहीं देता है। अरे एक एक करके बोलो, बोलो तो मनप्रीत। सर अल्सर क्या होता है? अल्सर पता है कभी है, कई बार आपको मुंह में छाले होते हैं वाइट वाइट कलर के, हाँ उसे अल्सर कहते हैं। उसे अल्सर, या उसे आप सोर भी कह सकते हो, राइट? That is something you can find happening on the genitalia, okay, which are slightly larger than what you find happening in the mouth, okay, and they're painful. Okay, so now let's start with something else. So now let's start with your gonorrhea. अब गोनोरिया की जब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, सो गोनोरिया की जब हम यहाँ पे बात करेंगे, सो व्हाट आई विल बी फाइंडिंग हैपनिंग हियर इज कि इसके अंदर भी यू विल फाइंड देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ बैक्टीरिया। Neisseria gonorrhea. So Neisseria gonorrhea is the name of the bacteria, और इस बैक्टीरिया की मदद से या इस बैक्टीरिया की वजह से आई वुड से कि दिस एसटीडी विल बी कॉज्ड। अब याद रखना अगेन दिस इज अ बैक्टीरिया, दिस इज गोइंग टू बी बैक्टीरिया, और इसके भी सिम्टम्स हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बट सारे कॉमन सिम्टम्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जो आपके लाइक यू हैव दिस जेनाइटल ट्यूब्स जो होते हैं लाइक वजाइना, यूरेथ्रा, उसमें ये जाके काफी ज्यादा पॉपुलेट करता है अपने आप, वहां पे जाके अपना नंबर वहां पे ये बढ़ाएगा। सो दैट इज अगेन अ बैक्टीरिया व्हिच इज गोइंग टू इंक्रीज इट्स नंबर इन द जेनाइटल रीजन, एंड अगेन दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी ट्रीटेड। अब क्योंकि अगेन ये बैक्टीरिया से आपके यहाँ पे कॉज किया जा रहा है, तो इसको भी आप यहाँ पे ट्रीट कर सकते हो। सो अगेन दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी ट्रीटेड, इज गोइंग टू बी वेरी मच क्योरेबल ओवर हियर। ये इतना सीवियर नहीं जाता, ये इतना सीवियर आपका नहीं जाएगा जितना सिफाइलिस जा रहा था, एंड इट इज गोइंग टू बी क्यूरेबल। अगेन क्योर करने के लिए आप यहाँ पे यूज करोगे आपके यहाँ पे एंटीबायोटिक्स। सो एंटीबायोटिक्स यूज करके इसको हम यहाँ पे क्योर कर सकते हैं, ओके। अगेन याद रखना, अगर एसटीडी होता है अगर उसे हम क्योर नहीं करते, अगर उसके ट्रीटमेंट नहीं करते, देन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस काफी ज्यादा वहां पे हो सकते हैं। याद रखना, अगर एमटीबी सॉरी अगर एसटीडी को अगर हम ट्रीट नहीं करते, देन हो सकता है कि फ्यूचर में इट कैन लीड टू अ प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन। ये अगर इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो गया, अब आप ये बात सोचो, अगर एक मेल इंडिविजुअल है, उसे अगर गोनोरिया हुआ और अगर वो उसकी ट्रीटमेंट नहीं लेता, देन देयर इज अ लाइकली चांस कि उसके जो गोनैड्स होंगे वहां पे इन्फ्लेमेशन हो सकता है।
अगर टेस्टिस या एपिडिडाइमिस के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, देन दैट पर्सन माइट बिकम इनफर्टाइल। ये भी पॉसिबिलिटी होती है। तो ये बात भी आप यहाँ पे याद रखना कि अगर एक इंडिविजुअल को अगर कोई ऐसी बीमारी होती है, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं होता, सो दैट पर्सन कैन बिकम इनफर्टाइल। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग दैट हैपनिंग। तो इसलिए व्हेनेवर दिस डिजीज आर बीन सीन, जब भी सिम्टम्स दिखते हैं, one has to go for a treatment because if it is not treated then it can lead to a long term consequences। काफी लंबे consequences या काफी बड़ा नुकसान हो सकता है यहाँ पे, मैं कहूंगा इस तरीके से। तो ये बात याद रखना। सो निसीरिया गोनोरिया इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया, और ये इसको हम क्योर कर सकते हैं। एंड सिम्टम जो मैंने आपको बताया था वो सारे सिम्टम इसमें लग जाएंगे आपके यहाँ पे। सो ऑल द सिम्टम व्हिच आई हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली और द सिम्टम्स कैन बी सीन ओवर हियर एज वेल। ठीक है, हाँ जी हर्षिता बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। फिर कौन से एंटीबायोटिक का यूज होता है? So you have a combination, you have a penicillin and you have a different combinations of antibiotics can be used over here। ठीक है, अब एक स्पेसिफिक अगर आप देखोगे तो स्पेसिफिक आप पेनिसिलिन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, बट उसके साथ साथ that's not the only antibiotic which has been used, right? You have multiple antibiotics जिसको आप कॉम्बिनेशन में यूज करते हो to get rid of the bacterial infection। ठीक है, सर ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा ना? कभी नहीं मतलब नहीं, ये सवाल आएंगे एमबीबीएस के अंदर। एमबीबीएस के वो भी फर्स्ट ईयर में वो भी नहीं आएंगे। आफ्टर इन द सेकंड ईयर दे विल आस्क यू that what kind of antibiotics are going to be used to kill a certain bacteria। नहीं बेटा, अगर ये आ रहे होते हैं ना एंटीबायोटिक्स वाले क्वेश्चन तो हम बैठ के करते हैं। सब लोग माहौल बनाते हैं, वापस से बैठते आराम से, सब पढ़ रहे होते हैं। राइट, यू माइट हैव हर्षदा, महाराष्ट्र की बुक में शायद होगा। महाराष्ट्र की बुक का कोई भरोसा नहीं, दे माइट हैव ऑल दोस थिंग एज वेल। है क्या उसके अंदर? यस सर, उनका कोई HSC में है। they can have everything over there। अभी तक वो लेसन स्टार्ट नहीं किया है सर, पर शायद होगा बुक में। उसके अंदर वो लोग दे ऐड थिंग्स व्हिच आर हैज टू बी देयर इन द ग्रेजुएशन ना, उसके अंदर वो ऐड करते हैं। बट इफ यू सी ना हर्षदा, जब वो लोग पेपर बनाते हैं तब उसके अंदर कुछ नहीं आता। पेपर बहुत ही लेम आता है। व्हेन यू सी द बोर्ड्स का पेपर ना महाराष्ट्र का, इट इज लाइक वेरी सिंपल इवन दो दे हैव एम्पल नंबर ऑफ कंटेंट इन देम। ऑलराइट, यस सर। so now that is your gonorrhea over here। now we can have a look at something like your, ये हो गए मेरे बैक्टीरिया वाले। ठीक है, now let's have a look at something like your HIV। let's talk about HIV AIDS। so HIV AIDS के बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, बिकॉज इसको हमने पढ़ना है चैप्टर 10 के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर। सो अभी इसको हम ज्यादा डिटेल में यहाँ पे समझेंगे नहीं। बस आप यहाँ पे ये याद रखना, इट इज नॉट क्यूरेबल। इट इज समथिंग विच इज नॉट क्यूरेबल। एक ये बात आप यहाँ पे याद रख लो। सेकेंड थिंग याद रखना, ये ऑर्गन को डैमेज नहीं कर रहा। इट इज नॉट अफेक्टिंग अ स्पेसिफिक ऑर्गन, नॉट अफेक्टिंग अ स्पेसिफिक ऑर्गन, नॉट अफेक्टिंग स्पेसिफिक ऑर्गन। ये स्पेसिफिक ऑर्गन को यहाँ पे अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये अफेक्ट किसको रहा है? ये जो वायरस आपका होगा HIV वायरस जो आपको यहाँ पे होता है, द HIV वायरस यू हैव, तो याद रखना दिस कॉज्ड बाय द वायरस। HIV is something which will be caused by the virus, right? Which is nothing but your HIV virus। अभी जो HIV वायरस जो यहाँ पे होगा, जिसको हम इवन कहते हैं रिट्रो वायरस, जो हम बाद में पढ़ेंगे, ये वायरस बेसिकली यहाँ पे क्या करेगा? दिस वायरस इज समथिंग विच विल गो एंड टारगेट योर इम्यून सिस्टम। याद रखना, ये जो ऐसे वायरस आपका होता है, ये जाके टारगेट करेगा इम्यून सिस्टम को। ये जाके टारगेट करता है इम्यून सिस्टम को। दिस विल गो एंड टारगेट द इम्यून सिस्टम। अब ये जाके टारगेट करेगा इम्यून सिस्टम को ना, तो आपका इम्यून सिस्टम यहाँ पे हो जाता है वीक, और उसके वजह से यू आर लाइक प्रोन टू ऑल द डिजीज विच कैन हैपन टू यू। तो आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, आपको इतनी बात याद रखनी, क्योंकि इसे हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे डिटेल में हमारे ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर के अंदर। इसको हम ज्यादा डिटेल में सीखेंगे। तो अभी आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, ये क्यूरेबल नहीं है। फर्स्ट थिंग, इट इज गोइंग टू बी कॉज्ड बाय द वायरस। इसका कोई क्योर होता नहीं है, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। ये स्पेसिफिक ऑर्गन को अफेक्ट नहीं कर रहा, और ये जो वायरस होगा ये इम्यून सिस्टम को टारगेट करेगा। तो HIV के साथ होता है ये कि अगर किसी को HIV होता है तो उसको सिम्टम्स दिखते ही नहीं है। कई बार सालों तक सिम्टम नहीं दिखते हैं, 5 years 10 years तक सिम्टम्स दिख ही नहीं रहे। स्लोली वायरस अपना नंबर अंदर बढ़ा रहा होगा, एंड उसके साथ साथ वो आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज कर रहा होगा। सो दैट इज क्वाइट वेरी लीथल थिंग अबाउट HIV। यू हैव नो सिम्टम्स, तो आप काफी सर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स इसके काफी कॉमन होते हैं, लाइक यू कैन हैव अ बैक पेन, यू कैन हैव अ हेडेक, यू विल हैव अ फीवर ओवर दे। जब सिम्टम्स आते हैं तब ऐसे सिम्टम्स आते हैं, जनरल बुखार वाले सिम्टम्स आते हैं कि हेडेक हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है आपको, फीवर आ रहा है। सो देयर विल बी द सिम्टम्स ओवर देयर, राइट?
एंड देन व्हेन यू गो फॉर अ ट्रीटमेंट, देन ड्यूरिंग अ ब्लड टेस्ट यू माइट गेट टू नो कि आपका WBC का काउंट काफी कम हो जाता है। और जब आप ब्लड टेस्ट कराते हो, जब आपको पता चलता है कि अगर WBC का काउंट काफी कम हो चुका है, देन यू गो फॉर HIV टेस्ट, देन अ डॉक्टर विल रिकमेंड टू गो फॉर HIV टेस्ट, क्योंकि HIV टेस्ट के अंदर ही पता चलता है आपको कि लाइक वो टेस्ट में पता चलता है आपको कि आपका वायरस स्ट्रेन है या नहीं है। ठीक है, सो उस टेस्ट को हम ELISA बोलते हैं, जो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना याद रखना, HIV इज अगेन इज कॉज्ड बाय द STD, इट इज आल्सो STD। हाँ, इसमें एक और चीज याद रखना, HIV जो होता है ना, इसके होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं। सो HIV होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं। यू कैन हैव समथिंग लाइक योर इट इज सेक्सुअल कांटेक्ट, सो सेक्सुअल कांटेक्ट तो यहाँ पे होगा ही होगा, कांटेक्ट तो यहाँ पे है ही। उसके साथ साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, काफी बार HIV होता है बिकॉज ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर कोई कंटैमिनेटेड ब्लड अगर आप ट्रांसफ्यूज कर रहे हो जिसमें ऑलरेडी HIV का वायरस है, तो ये यहाँ पे आपका किसी दूसरे पर्सन को हो सकता है। देन यूज ऑफ सेम सिरिंज, यूज ऑफ सेम सिरिंज, तो अगर कोई एक सिरिंज यूज की जा रही है हॉस्पिटल के अंदर, तो आप कभी नोटिस करना उसे यूज करके लोग ब्रेक कर देते हैं, वो उसे ब्रेक कर देते हैं। बट अगर कई बार कोई हॉस्पिटल उसे वापस यूज कर रहा है, मल्टीपल टाइम्स अगर उसे वो यूज कर रहा है, then it can cause then that can be a source of HIV. Okay, even ये आपको मिलेगा देखने के लिए ज्यादा ड्रग अब्यूजर्स के अंदर। People who are drug abusers, they generally have this HIV का स्ट्रेन उनके अंदर मिलता है देखने के लिए, because वो लोग थोड़ी ध्यान रखते हैं कि ड्रग लिया फिर like again change करते syringe, now you take, they don't do that, right? They just take a single syringe and they use all the time over there. So that is can also something which can cause you the HIV over here, right? उसके साथ साथ मदर टू बेबी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, दैट कैन आल्सो हैपन। सो मदर टू fetus ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तब भी HIV ट्रांसफर हो सकता है। अब अभी जो हमारी मेडिसिन जो मिलती है ना, दैट कैन प्रोटेक्ट दिस कंडीशन। सो अगर समझो कि अगर वेमेन को पता है, लाइक इफ अ गर्ल is HIV positive, right? She can still have a baby who is going to be HIV negative. She can still have a baby who is going to be HIV negative. तो ये possibility है, with certain kind of medications ये किया जा सकता है, right? But लेकिन अगर आप उस चीज का ध्यान नहीं रख रहे, अगर आप ही अनअवेयर हो, then yes, the baby which will be born will also going to be HIV positive. तो ये आपको रीजन यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हाँ जी हर्षिता बताइए। सर आपने बोला कि ये डिसीज क्यूरेबल नहीं होता है, तो क्या मतलब जिसको ये होता है तो वो लॉन्ग लाइफ तक लिव कर सकता है? हाँ, वो लॉन्ग लाइफ तक लिव कर सकता है, बट वो HIV ही रहेगा, वो पर्सन HIV पॉजिटिव ही हो रहेगा। सो बेसिकली होता क्या है ना हर्षदा, अगर किसी को HIV हो तो HIV और एड्स अलग अलग चीज होती है, राइट? अगर मैं आपको यहाँ पे आइडिया दूं, सो इफ पर्सन इज सफरिंग विद HIV ना, हम ये नहीं बोलते कि ही इज सफरिंग विद एड्स। ओके, जब किसी को HIV है तो उसको लाइक ही हैज टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम काफी वीक हो जाता है। अब क्योंकि इम्यून सिस्टम उसका काफी ज्यादा वीक हो जाता है, तो उस पर्सन को कोई भी बीमारियां हो सकती है। अब नॉर्मली क्या होता है कि एक इंसान को एक बीमारी एक ही बार होती है, जैसे अगर मुझे ट्यूबरक्लोसिस हुआ तो मुझे वापस नहीं होगा। बट किसी को अगर HIV है, उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक होता है कि सारे बैक्टीरिया वायरस उसके बॉडी को घर बनाने की कोशिश करते हैं। सो दैट पर्सन विल स्टार्ट गेटिंग अ नंबर ऑफ डिजीजेस ओवर देयर। He will get tuberculosis multiple times, निमोनिया उसे हो जाएगा, नॉर्मल सर्दी खांसी will turn into pneumonia, कैंसर हो जाएगा उसे कुछ टाइप का जो नॉर्मली होना नहीं चाहिए था। जब ये सब होने लगता है ना, तब हम कहते हैं that a person is suffering with the AIDS. तब हम कहते हैं that a person is suffering with the AIDS. और जब हम कहते हैं कि that person is suffering with AIDS, then he does not have a long lifespan. उसके बाद उसका लाइफ स्पैन 1 या 2 साल का होता है मैक्स टू मैक्स। So person having HIV can have a longer lifespan. गिवन उसको वो अपने आप को थोड़ा ध्यान रखे, ही एंश्योर्स दैट कि उसे बीमारियां ना हो, जनरली जो होती है, लाइक ही हैज टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, ही हैज टू कीप हिमसेल्फ इन सच अ कंडीशन कि उसको लाइक जनरल बीमारी वहां पे आपकी ना हो। एंड सेकंड, तो क्या हम मतलब इम्यून सिस्टम बढ़ा नहीं सकते? जाओ 2 मिनट। What will be happening here now? People suffering with HIV, the main concern over here comes over here is कि एक तो उसका इम्यून सिस्टम वीक है, उसे बीमारी हो रही है, बट उससे ज्यादा कंसर्न ये आता है the social isolation the person gets. अगर किसी को HIV हुआ है, उसको जनरली करा किया जाता है, उसको सोशली आइसोलेट कर दिया जाता है सोसाइटी के अंदर बिकॉज ऑफ द HIV, राइट? एंड वन ऑफ द रीजन इज पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट कि HIV होता कैसे है। पीपल थिंक अगर किसी को HIV है तो उसने अगर टच भी कर लिया
या उससे हमने बात कर ली या उसके कांटेक्ट की कोई चीज को हमने टच कर लिया, सो एचआईवी हो सकता है. सो व्हाट हैपेंस इफ अ पर्सन इज सफरिंग विद एचआईवी अदर देन द डिजीज इज, ये जो सोशल आइसोलेशन होता है ना, ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. Social isolation creates a stress and anxiety to the person, and that become a reason for getting him diseased. So that is good enough. The social stigma of the HIV itself is good enough to kill a person actually. So that is why ये सब चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाती है. That is why we have this chapter, we have this certain chapters and certain topics over here, ताकि लोगों को बताया जा सके that how one disease spreads from one person to another person, right? And it should be clear in such a way ताकि लोग एक social isolation create ना करें किसी के साथ. Imagine someone suffering with HIV only because क्योंकि उसने blood transfusion कराया था आज से 6 महीने पहले. He is suffering with now HIV, and suddenly the people what they do in the society, they isolate that particular person. कोई से बात नहीं कर रहा, कोई से invite नहीं कर रहा, right? That is something which creates a issue in the country. That is something which leads to a condition जहाँ पे the person gets disease, right? And then it becomes difficult to survive. ठीक है? So person with the HIV can have a longer lifespan, right? But until he starts getting opportunistic diseases, तब तक उसका longer lifespan आपका हो सकता है. But yes, you can find people with HIV living for a longer period of time again, but you have to have those kind of circumstances. ठीक है? Now, Yes, tell me what is that? सर उसकी मतलब इम्यून सिस्टम उसकी वीक नहीं होती है तो हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते. ऐसे नहीं होता. इम्यून सिस्टम ऐसे स्ट्रांग नहीं की जा सकती कि काढ़ा पिला दिया, लेमन जूस पिला दिया. You cannot do that. That's not how it works. Right? ओके सर. So yeah, please all of you understand. जो एक आता है ना कई बार बीच में जब कोविड हुआ था ना, तो बॉर्नविटा के ऊपर भी लिख के आता था इम्यून बूस्टर करके. कॉम्प्लान के ऊपर भी लिख के आता था इम्यून बूस्टर. ऐसा नहीं होता. ठीक है? That's not how your immune system is going to work. There are certain elements which can have an advantage to your immune system, right? जैसे विटामिन डी एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होता है जिससे इम्यून सिस्टम आपका अच्छा रह सकता है. But not everything is going to work, right? So ऐसा नहीं होता. You cannot simply increase someone's immune system. That's not how it works. ऐसा होता तो फिर तो लाइफ अलग होती सबकी, right? So that is something you have to know. हाँ जी हर्षदा बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए. नो सर बस हो गया. हो गया, ठीक है. So this is something you have to know. और हमारे पास है अभी सिर्फ 5 मिनट. So ये पहले ये बताओ, HIV की कहानी आपको यहाँ तक समझ आ रही है? Is this clear to all of you? हाँ बोलो, बताइए क्या सवाल है आपका. सर अगर हम मतलब मान ले एक पर्सन को HIV है तो सर वो अगर उसका ध्यान नहीं रखेगा तो उसको एड्स होगी. हाँ, अगर उसने अपना ध्यान नहीं रखा ना, देन वेरी लाइकली चांस कि उसको फटाफट डिजीज होना चालू हो जाएंगी. निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, कपूसी कैंसर एंड सम अदर डिजीज विल स्टार्ट हैपनिंग ओवर देयर. एक बार सारी डिजीज होने लगी ना, देन आपका बॉडी एक तो उसे बचा नहीं सकता, उसके पास इम्यून सिस्टम है ही नहीं डिजीज के साथ लड़ने के लिए, राइट? सो बॉडी का फिर सिर्फ डिग्रेडेड ही होगा वहां पे. फिर इट विल the health will start deteriorating over there. And once the person has multiple disease inside the body now, at that point of time we say that he is suffering with AIDS. That's when we say he is suffering with AIDS, and then you don't generally find them surviving for more than a year or two. That's it. ओके सर. ठीक है, तो ये बात आप यस. राइट. सो आई होप ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर है. एंड ऑल्सो आपको यहाँ पे क्लियर है कि ये क्यों हो रहा है यहाँ पे. सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यूज ऑफ सेम syringe, mother to fetus during pregnancy, and that's something we'll get to see. I don't know ये बात आपको पता होगी या नहीं पता होगी कि पंजाब में कई सारे NGOs होते हैं, and those NGOs actually go out there and they know कि कुछ लोग ड्रग यूज कर रहे हैं, तो उनको जाके वो नई syringe देते हैं. They ensure that they are getting at least new syringe whenever they are using the drugs. Okay, whenever they are getting shots of the drugs, ताकि उनको HIV के उनकी डेथ ना हो. कुछ NGOs ये भी कर रहे होते हैं, right? Because it is such a thing which, if at all happens, it has a 100% mortality. Right, and it is not curable, so that is the thing, right? So yeah, that's it. This is what we have done. So we have done the HIV/AIDS. हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लिया. यार इतना curable नहीं है आपका ये, और ये वायरस से हो रहा है. We have done the gonorrhea over here. We have seen the gonorrhea, इसकी कहानी क्या है वो हमने यहाँ पे देख ली थोड़ी बहुत. यहाँ पे syphilis की कहानी हमने यहाँ पे सुन लिया. So जब हम आपसे वापस मिलेंगे तो वो टाइम पे we will be discussing remaining your STDs. ये क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वाल्व्स, और चीजें हम लोग कर देंगे वापस से. ये सब हम देख लेंगे. एंड देन या दैट्स इट. आई डोंट थिंक इट विल टेक मोर देन 2 लेक्चर्स टू कंप्लीट दिस चैप्टर. सब कुछ सही रहा ना तो 2 लेक्चर में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, राइट? और सब कुछ सही नहीं रहा तो 3 लेक्चर लग जाएंगे चैप्टर को खत्म होने में, राइट? इट्स अ स्मॉल चैप्टर, सो इट वोंट टेक मोर अमाउंट ऑफ टाइम. इट ऑल कम्स डाउन टू यू कि आप कितना यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हो, उतना जल्दी क्वेश्चन आपका खत्म होगा. ठीक है,
सो या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अभी आपके साथ मैं अगले 30 सेकंड के अंदर तो नहीं, बट अगले 2 मिनट के अंदर आपके साथ असाइनमेंट शेयर करूंगा। असाइनमेंट विल बी फॉर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके शेयर कर देना मुझे, ठीक है। सो हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट हम 2 असाइनमेंट और सॉल्व करें टेस्ट के पहले, ताकि आपका चैप्टर को लेके, कॉन्सेप्ट को लेके आपकी ग्रिप वापस बन जाए और आप सब लोग एक अच्छा स्कोर लाके खुश रहें। उसी बहाने लाइक मैं भी खुश रह लूंगा, ठीक है। ऑलराइट, सो नाउ टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेश्चंस ओवर हियर। अगर कोई क्वेश्चन या डाउट यहाँ पे तो बताइए मुझे आप। यस सर। कोई क्वेश्चन या डाउट नहीं है यहाँ पे? यहाँ तक सब ठीक है सब? है सर। अरे बोलो बेटा, बोलो, Yes, sir. बोलिए बेटा। HIV मतलब किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है? हाँ, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। बेसिकली तो पीपल हु इसका आर, let's understand this thing. Let's say someone who's going to be sexually active with a multiple partners, they are prone to HIV. Someone who's going to be drug abuser, कहीं पे बैठ के, he is prone to HIV. Someone who has only gone for blood transfusion क्योंकि उसकी बीमार हुआ था 2 दिन पहले और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ा, तो उसकी तो कोई गलती है भी नहीं कहीं से भी, he might suffer with HIV, right? A child might not have a HIV because you generally don't find children actively involved in any kind of like, they are not involved in any kind of like sexual activity by any means. Neither they are drug abusers. उनमें आपको नहीं मिल सकता होते हुए, right? But adults के अंदर it is something. These are the reasons I've just told you can cause the HIV. सर मदर से फिटस में तो वो जाता हो है सकता मतलब? है, वो तो हो सकता है, वो हो सकता है, yeah, that is a possibility. वो तो मदर के एंड से आ रहा है, मदर टू फीटस. So baby is born with the HIV case, right? But again, the good thing is now we have some medications which can prevent that to happen. अगर आपको पता हो पहले से that the girl is suffering with HIV, then you can do that. So that's a good thing, actually. सर जो बेबी मतलब HIV पॉजिटिव होगा तो उसकी डेथ तो मतलब जल्दी हो जाएगी क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम तो पहले से ही वीक Immune होता है। system compromise होगा, so they have to undertake super care. उनको अपना बहुत ज्यादा वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा. And then only they can have a longer life. They can have a longer life, right? They can have a life, but again, it has to be like super careful life. Like they have to be very careful with their कहाँ पे जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं. They have to take care of all those things. Then only they can have a long life. Yes, बाकी दिक्कत वही रहेगी, मोनिका, that yes, they will have a compromised immune system. अगर ध्यान नहीं रखा गया, the kid will die early. That is also true. ठीक है. So जब एक certain class के लोगों को या people who are living in a like slightly I would say in a very compromised conditions में अगर वो लोग रह रहे होते हैं, अगर वहां पे ऐसा कुछ होता है, then yes, it is something which is lethal to the baby over there. ठीक है. हाँ जी अक्षरा बताइए. अक्षरा आपकी आवाज नहीं आ रही.